بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستان، مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائس آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ یونیورسٹی آف گجرات۔ اپنی گاڑی سے اترتے اس کی نظر پہلی یونیورسٹی کے گیٹ کے اوپر تک گئی تھی اور چند سیکنڈ گیٹ کا جائزہ لینے کے بعد اس کی نظر کا پیمانہ یونیورسٹی کا طول و عرض ناپنے میں لگ گیا۔ حالانکہ یونیورسٹی کا وسیع اور یہ احاطہ اس کی ایک نظر کے حصار میں سمٹنے والا ہرگز نہیں تھا، یہ ایک ناممکن سی کوشش میں تھا اور اس کی کوشش گاڑی میں بیٹھے اس کے دوست کو گاڑی سے اترنے پر مجبور کر گئی۔ وہ متوازن قدم اٹھاتا سیدھا اس کے برابر آ کھڑا ہوا۔ جناب حسی صاحب، یہ گیٹ یو او جی کا گیٹ ہے، جنت یا جہنم کا نہیں، جہاں سے گزرنے کے لیے آپ اتنی سوچ بچار سے کام لے رہے ہیں۔ خوابہ نے یونیورسٹی آف گجرات کا مخفف استعمال کرتے ہوئے کہا اور ساتھ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے متوجہ کیا، لیکن اس کے متوجہ کرنے کے باوجود وہ چونکا یا پھر گڑبڑایا نہیں تھا، بلکہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے دوبارہ یونیورسٹی کے تحت نظر پھیلے احاطے پر ایک طائرانہ سی نگاہ ڈال کر اپنے برابر کھڑے خاور کی سمت دیکھا۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہم لوگوں نے اس یونیورسٹی میں 4 سال گزارنے، اور 4 سال کا عرصہ کچھ کم عرصہ نہیں ہوتا۔ ان 4 سالوں میں کیا کچھ ہونے والا ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ نئی جگہ، نئی روٹین، نئے تجربات، نئے دوست، نئے دشمن، سب کچھ نیا، لیکن 4 سال بعد یہی سب کچھ 4 سال پرانا ہو چکا ہوگا۔ ہر نئی چیز پرانی میں بدل جائے گی۔ اس کی بات میں گہرائی تھی اور انداز حد سے زیادہ سنجیدہ، جس کو دیکھتے ہوئے خاور کو بھی سنجیدگی کے لبادے میں آتے ہوئے محض 2 سیکنڈ لگے۔ جدو لنگ تھا نا ٹائم، وہ تو پتہ بھی نہیں لگتا تھا، سب تو اچھا ٹائم ہوتا ہے جو یونیورسٹی پیریڈ ہوتا ہے، اور ہمارے تو 6 سال گزر گئے جدو گزر رہے سی، اور اس سال لگتا سی کہ ہائے کدو لنگن گے تھے، ہوں جدو لنگ کے تے اب یاد آتا ہے۔ ہاں یار، یہ تو تم ٹھیک کہہ رہے ہو، 4 سالوں میں بہت کچھ بدل جاتا ہے، زندگی، ذہن، حالات، وقت اور انسان بھی۔ خواہ اگر سنجیدگی کے لبادے میں ہوتا تو اس جیسا فلاسفر کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن یار میں سوچتا ہوں کہ سب کچھ بدل جائے بس انسان نہ بدلے۔ ان دونوں کی سنجیدگی ہنوز تھی، البتہ یہ اور بات تھی کہ ان کی سنجیدگی کا لبادہ اترنے میں بس ایک لمحہ ہی لگتا تھا، پھر سنجیدگی کا کہیں شائبہ تک نہیں ملتا، دیکھنے اور سننے والے اس اچانک رنگ بدلتے پر بدک کے رہ جاتے۔ لیکن یار انسان بدل جاتا ہے پر شیطان نہیں بدلتا، شیطان 4 سال بعد بھی شیطان ہی دے گا، مجھے پکی امید ہے بلکہ کامل یقین ہے۔ خواہ نے جتنے سکون و اطمینان سے کہا، اتنے خونخوار اور کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے ہوئے اس کی طرف رخ پھیرا تھا، اور خاور اس کے ایسے خطرناک تیور پھامتے ہوئے ایک ہی جست میں سے 5 فٹ کے فاصلے پر پہنچ گیا تھا۔ تم نے شیطان کس کو کہا ہے؟ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا خاور کی طرف بڑھا۔ اوبویسلی تینوں کیا، شیطان کو، اور کس کو؟ اس نے کندھے اچکائے پیچھے کی طرف قدم اٹھاتا اسے دور ہوتا گیا۔ حالانکہ تمہاری اپنی حرکتیں شیطانوں جیسی ہیں، وہ چبا کر بولا۔ ہر شیطان دوسرے کے بارے میں یہی سوچتا ہے۔ خواہ نے اب بھی سکون سے جواب دیا، یعنی تم مان رہے ہو کہ تم اگر میرے بارے میں ایسا کہہ رہے ہو تو تم خود شیطان ہو، اس لیے ایسا سوچتے ہو؟ اس نے بتلا چکا۔ خواہ اپنی بات میں پھنس گئے، لیکن ہمت نہیں آ رہی۔ ہاں میں شیطانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنی تو نہیں۔ اچھا تو پھر کون ہو تم؟ حسی نے اسے دلچسپ اور شریر نظروں سے دیکھ کر مانی کھیلی سے پوچھا۔ انسان، خافر نے فخر سے کہا، اس کی ہنسی چھوٹ گئی، وہ کہکہ لگاتا ہنستا وہ اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارتا اس کا لفظ دہرا رہا تھا۔ انسان؟ واہ کیا کہنے اس انسان کے! جاؤ شاباش، ذرا گاڑی کے مرر میں اپنی شکل تو دیکھ کر آؤ، پھر آ کے بتاؤ کہ تم انسان کہاں سے لگتے ہو۔ اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا۔ خاور ایسی عزت افزائی پر کھنسی آگیا، اور نہ جانے اور بھی کتنی عزت افزائی ہونا باقی تھی کہ اچانک ہنسی کے قب سے کوئی نسوانی آواز ابھری۔ سر کیا میں یہاں گاڑی پارک کر سکتی ہوں؟ وہ ہنسی سے پوچھ رہی تھی، اور ہنسی نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا، پھر گیٹ کے باہر والے روڈ کو، اور پھر ایک نظر خاور کو۔ سوری میم، یہ میرا بیڈ روم ہے، آپ یہاں گاڑی پارک نہیں کر سکتی۔ اوئے ہوئے، اس نے انتہائی سنجیدگی سے کہتے ہوئے نفی میں گردن لائی، اور اس کی بات پر جہاں وہ لڑکی سٹپٹائی ہوئی خاور کا کہکہ ابل پڑا۔ وہ چاہتے بھی اپنی ہنسی کنٹرول نہیں کر پایا، کیونکہ وہ بات اتنی سنجیدگی سے کر رہا تھا کہ ایک لمحے کے لیے واقعی ایسے لگا کہ یونیورسٹی کا روڈ نہیں بلکہ اس کا بیڈ روم ہے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ لڑکی تھوڑا غصے سے بولی۔ ویسے حسینو نا عزت نہیں پچی، گل ہے ساری، گل دا نچوڑ ہے۔ یہ بدتمیزی نہیں میڈم، یہ سڑک ہے، کیا آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اس نے اپنے سابقہ انداز سے جواب دیا۔ خاور ہنسی چھپانے کے لیے رخ موڑ گیا۔ مجھے تو نظر آ رہی ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ کسی لڑکی سے بات کرو، لڑکیوں سے کس طرح بات کرنی چاہیے؟ وہ لڑکی بھی غصے کی تیز لگتی تھی۔ اوہ سوری، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ لڑکی ہیں، میں تو کچھ اور ہی سمجھا تھا۔ مخلان، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، وہ تیزی سے چبا کر بولی۔ دیکھیے مس، آپ خواہ کا اپنا ٹیمپر لوز کریں، ایک پبلک پلیس ہے، یہاں کوئی بھی گاڑی پارک کر سکتا ہے، آپ جہاں چاہیں گاڑی پارک کریں۔ دوسروں سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ خواہ نے تیری سے درمیان میں آتے بیچ بچاؤ کروایا، ورنہ آج پہلے دن گیٹ پر ہی پھڈا شروع ہو جاتا، اور باقی کا پورا دن غصے اور بیزاری سے گزرتا، لہٰذا اس نے اس لڑکی کو سمجھا بچا کے اس کے راستے پہ بھیجا، اور حسی صاحب کو ساتھ لے کر یونیورسٹی میں آ گیا، جہاں آج انتہا کا رشتہ، کیونکہ آج ایڈمیشن کی لاسٹ ڈیٹ تھی، ہر طرف اسٹوڈنٹ کی بھاگ دوڑ مچی ہوئی تھی۔ البتہ وہ خود مطمئن تھے کیونکہ ایڈمیشن ہو چکے تھے، اسے عزت نہیں بچی، انہیں جو عزت دے ہی دیتی سی تے پھر پچا لینا تھوڑی جنی،
میرا نام رائنا حیدر ہے، گجرات کی رہنے والی ہوں۔ میری فیملی پچھلے 20 سال سے انگلینڈ میں مقیم تھی، لیکن 20 سال بعد میری ماما کا دل اتنا اداس ہوا کہ پاپا سے کہہ کر وہ پاکستان شفٹ ہو گئی۔ ماما کے بغیر کہیں بھی رہنا ہمارے لیے بھی ناممکن تھا، سو مجبوراً ہمیں بھی انگلینڈ چھوڑنا پڑا۔ حال ہی میں پاکستان کو رونق بخشی ہے، اس لیے اپنی اسٹڈی کا سلسلہ بحال رکھنے کے لیے بھاگ دوڑ جاری ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے آگے۔ اس نے وہاں موجود لڑکیوں سے اپنا تعارف کروایا، کیونکہ ایک دو نے اس سے نام بھی پوچھا تھا اور اس سے کئی اور سوال کیے تھے، اس لیے اس نے سب کو تسلی بخش جواب سے نوازا تاکہ وہ لوگ دوبارہ کچھ نہ پوچھتے۔ لیکن اس کی خام کیا رہی تھی، سوال بھی کبھی ختم ہوتے ہیں بھلا، وہ بھی لڑکیوں کے۔ گجرات میں کہاں رہتی ہو؟ ایک اور سوال آیا۔ ماڈل ٹاؤن، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ کتنے بہن بھائی ہیں؟ دوسرا سوال۔ 2 بہنیں 1 بھائی۔ بہن بھائیوں میں بڑا کون ہے؟ تیسرے سوال میں بھی دیر نہ لگی۔ بھائی بڑا، ہم دونوں چھوٹی ہیں۔ کیا کہیں انگیجڈ ہو؟ چوتھا سوال کھوجتا ہوا تھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر لیا۔ کوئی محبت کا چکر تو نہیں چل رہا؟ پانچویں سوال کی معنی خیزی سے بری لگی۔ مائنڈ یور لینگویج مس، میں کسی کا اتنا پرسنل ہونا پسند نہیں کرتی۔ میں اگر آپ کے سوالوں کے جواب دے رہی ہوں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اپنی لمٹ کراس کر جائیں۔ اس نے ملا کر ان لوگوں کے سوالوں کا منہ بند کر دیا تھا اور وہ سب چپ ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ جب سے پاکستان آئی تھی اس نے یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہاں کے لوگ ذرا سی بات کو بہت زیادہ گریزتے ہیں، ایک دوسرے کی ٹو میں لگے رہتے اور اس کوشش میں اپنا ذہن بھی برباد کرتے اور وقت بھی، لیکن اپنی اس غلطی کو تسلیم کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس میں غلط کیا کہہ دیا ہم نے؟ آج کل تو ہر کوئی دوسرے لڑکے لڑکی کا چکر چل رہا ہے، یہاں اتنا پارسا اور باکردار کون ہے بھلا؟ وہ لڑکی جواباً طنزیہ نظروں سے دیکھ کر بولی، لیکن اس کی بات پر رائنا کا خون کھول اٹھا۔ اس آج کل میں تو پھر آپ بھی شامل ہوتی ہیں کہ آپ کے پارسا اور باکردار ہونے پر بھی وہی شک ہے جو آپ کو دوسروں کے بارے میں۔ رائنا کا جواب کرارا تھا جس پہ وہ لڑکی بل بلا اٹھی تھی۔ اس نے کچھ کہنا چاہا مگر اس کی دوسری دوست نے اسے روک دیا۔ آج پہلا دن پہلی ملاقاتیں تھی، اس لیے سبھی لڑائی جھگڑے سے پرہیز کر رہے تھے، ایک دوسرے کے متھے نہیں لگنا چاہتے تھے۔ رفتہ رفتہ وہاں موجود تمام لڑکیاں اٹھ کر چلی گئی، بس رائنا اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ ہائے، مجھ سے دوستی کریں گی؟ وہ اسے وہاں اکیلے بیٹھے ہوئے 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ اچانک اس کے قریب ایک انتہائی فریش آواز سنائی دی۔ وہ لڑکی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے کھڑی تھی۔ السلام علیکم، آپ کون ہیں؟ رائنا نے اس لڑکی کو الجھن بھری نظروں سے دیکھا اور ہائے کی بجائے سلام کیا۔ او وعلیکم السلام، میرا نام جوہر ارا ہے، سب گھر والے اور فرینڈ جوجو کہتے ہیں۔ آپ بھی مجھے جوجو کہہ سکتی ہیں کیونکہ آپ کی صورت میں مجھے اپنی مستقبل کی ایک بیسٹ فرینڈ نظر آ رہی ہے۔ اس نے ابھی تک اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کیا، رائنا کو دلچسپ نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ رائنا کو حیرت ہوئی۔ مطلب یہ کہ میں آپ سے دوستی کرنا چاہتی ہوں۔ میں تھوڑی دیر پہلے ان لڑکوں کے ساتھ آپ کی ساری باتیں تعارف سن چکی ہوں، ان لڑکیوں کے ساتھ آپ مجھے کافی سمجھدار لگتی ہیں، اس لیے آپ سے فرینڈ شپ کرنا چاہ رہی ہوں۔ اس لڑکی کی لاپرواہی اور انداز ہنوز سے رائنا حیرانی سے دیکھے جا رہی تھی، جو ذہن میں وہ کہہ بھی دیا، سوری لیکن آپ مجھے کہیں سے بھی سمجھدار نہیں لگ رہی۔ رائنا کا انداز بچا تھا، وہ لگی اسیری تھی۔ یہ بھی آپ کی سمجھداری کا ثبوت ہے کہ آپ پہلی نظر میں میری خصوصیت پہچان گئی۔ میں واقعی سمجھدار نہیں ہوں، لیکن مجھے ایک سمجھدار فرینڈ کی ضرورت ہے جو مجھے سمجھا سکے، میرا اچھا برا سمجھ سکے۔ اس نے مسکراتے ہوئے لاپرواہی سے کہا اور رائنا نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات پر مسکرا اٹھی اور پھر بے ساختہ اس کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ نائس ٹو میٹ یو۔ رائنا کو واقعی جوجو سے مل کر اچھا لگا، وہ بھی گجرات کی رہنے والی تھی۔ اچھا جی، میرا نام حسن علی ہے، لاہور کا رہنے والا ہوں۔ میری فیملی کا ذات خیال فیملی ہے، جب چاہو جو چاہو کر سکتے ہو، کوئی رکاوٹ نہیں۔ مام ڈیڈ دونوں بہت نائس ہیں، خود بھی فٹ رہتے ہیں اور ہمیں بھی فٹ رکھتے ہیں۔ ہم لوگ 1 بہن اور 2 بھائی ہیں۔ بھائی مجھ سے بڑا ہے، لمز یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، آج کل فائنل سیمسٹر کی تیاریوں میں اور ہائر اسٹڈی کے لیے امریکہ جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ مام چاہتی تھی کہ میں بھی لمز میں ایڈمیشن لے لوں، مگر میرے 2-3 کلاس فیلوں نے یو او جی میں ایڈمیشن لینے کا ارادہ ظاہر کیا تو مجھے بھی انٹرسٹ ہونے لگا، سو میں بھی یہیں آ گیا۔ اب دیکھو کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ اس نے اپنے تازہ ترین دوستوں کو اپنے بارے میں ذرا تفصیل سے بتایا۔ یہاں آ کر کیسا لگ رہا ہے؟ سب سے پہلا سوال توصیف نے کیا۔ ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا، اس نے کندھے اچکائے۔ کیوں؟ زیگم نے بے ساختہ پوچھا۔ یار ابھی مجھے آئے ہوئے دن ہی کتنے ہوئے، لیکن پھر بھی، توصیف نے اصرار کیا، شاید اچھا ہی لگ رہا ہے۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا، ہاں یار ابھی تو تم نے صرف یونیورسٹی دیکھی، یونیورسٹی کے رنگ نہیں دیکھے۔ عباس کی زبان میں کھجلی ہوئی تھی، جس پر حسن بے ساختہ معنی کے اس کہکا لگا کے ہنسا۔ ہنس کیوں رہے ہو؟ ان لوگوں نے اسے گھور کے دیکھا تو ان کے چہروں پر خفگی تھی کہ بلا وجہ کیوں ہنس رہا ہے؟ میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ یونیورسٹی نے بھی ابھی صرف مجھے دیکھا، میرے رنگ نہیں دیکھے۔ وہ ان لوگوں کی بات سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اپنے رنگوں کی نوعیت بتا سکتے ہو؟ زیگم نے اسے جانچتی ہوئی نظر سے دیکھا۔ 4 دن صبر کرو، سب کچھ سامنے آ جائے گا، رنگ بھی اور رنگوں کی نوعیت بھی۔ حسن نے اس کا کندھا تھپک کر اسے تسلی دی۔ ایڈا تو کیا مطلب ہے تمہارا؟ 4 دن صبر؟ زیگم الجھتے ہوئے بولا۔ ہاں 4 دن صبر، پھر جیسے جیسے یونیورسٹی کے رنگ سامنے آئیں گے ویسے ویسے میرے بھی آ جائیں گے۔ اب تو تم ان رنگوں کی بات کر رہے ہو؟ توصیف سمجھ چکا تھا۔ جی ہاں، میں انہی رنگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے وجود سے کائنات میں رنگ ہے۔ حسن کا لہجہ زبانی تھا۔ اچھا تو تم میں یہ کوالٹی بھی پائی جاتی ہے؟ عباس حیرت سے بولا۔ جناب، ہم میں ہر کوالٹی پائی جاتی ہے، آپ آزما کے دیکھیں۔ وہ سینے پر ہاتھ رکھ کے گردن جھکاتے ہوئے اداب بجا رہا ہے۔ پھر تو خوب گزرے گی جب مل بیٹھیں گے دیوانے 10۔ توصیف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اور وہ سب بیک وقت ہنس پڑے تھے۔ ان کی شرارت اور کمینگی ان کی ہنسی سے ظاہر ہو رہی تھی۔ بغیرت رہ لگے سارے۔ کیا پہلے بھی کسی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے؟ توصیف کو ایسی باتیں بہت اٹریکٹ کرتی تھی۔ یار چکر تو بہت چلے ہیں، لیکن میرا چکر ایسا ہوتا ہے کہ جو چلتا بھی نہیں مگر چکرا کے رکھ دیتا ہے۔ اس نے آنکھ دبائی، وہ سب حیران ہوئے۔ یہ کیسا چکر ہے بھلا؟
बस यार कहा जो 4 दिन सब्र करो सब समझ आ जाएगा। वो तौसीफ़ का गाल थपक के उठ गया था और फिर रफ्ता रफ्ता सब दोस्त ज़हनी आम मांगी की बदौलत एक ग्रुप की शक्ल इख्तियार करके और एक दूसरे के बहुत करीब आके इनका ग्रुप डिपार्टमेंट का नुमाया ग्रुप था। रायना उठो, मम्मा बुला रही हैं। मायरा दरवाजे पे दस्तक देकर अंदर चली आई थी। रायना रायना उठ जाओ प्लीज़, सुबह से मैं तुम्हें कितनी आवाज़ें दे चुकी हूँ। मायरा ने कंबल में दुबकी रायना के ऊपर से कंबल खींच लिया। प्लीज़ मायरा, सिर्फ 10 मिनट और प्लीज़, बहुत सख्त नींद आ रही है। इसने बंद आंखों के साथ कंबल वापस लेना चाहा। मोहतरमा 10 मिनट और सोई तो आज यूनिवर्सिटी नहीं पहुंच सकोगी। मायरा घूर के बोली और रायना ने बेजारी से आंखें खोलते वॉल क्लॉक की सेम देखा। 8 बजने में 10 मिनट बाकी थे। 8:30 बजे इसने क्लास में पहुंचना था। अभी शावर लेना था, कपड़े चेंज करने थे, नाश्ता करना था, यूनिवर्सिटी भी पहुंचना था। इसकी जागी सोई आंखें एकदम पट से खुल गई और वो लपक झपक कर उठकर वॉशरूम में घुस गई। मायरा खपकी से सर झटकती हुई बाहर आ गई। वो आजकल एग्जाम देकर कुछ दिनों के लिए फारिग और रिलैक्स थी। उठ गई रायना? मामा ने इसे देखते पूछा। जी उठ गई, वॉशरूम में। मायरा कुर्सी घसीट कर नाश्ते के लिए बैठ गई। चलो तुम नाश्ता शुरू करो, तब तक वो भी आ जाती है। मैं नाश्ता शुरू करके ख़त्म भी कर लूँगी, वो फिर भी नहीं आएगी। मायरा को इसके बारे में सब पता था। इसके मजाज को समझती थी। बाकी जब मायरा नाश्ता ख़त्म करके उठी तब वो तैयार होकर बेडरूम से बाहर निकली। ओके मॉम बाय, वो करीब आते हुए बोली। लेकिन बेटा तुम्हारा ब्रेकफास्ट? इट्स ओके, मैं कैंटीन से कुछ खा लूँगी। वो उजरत में हाथ हिलाती मॉम का गाल चूम कर बाहर निकल गई और मामा आवाज़ें देते रह गए। मैंने क्या कहा था आपसे? मायरा मुस्कुराती हुई करीब आ गई। अब तुम्हारे जैसा तो कोई नहीं, हर बात मानने वाला एक अच्छा बच्चा। मॉम ने मायरा के बाल से हिलाया और मायरा हंस पड़ी। आप भी तो बहुत अच्छी हैं मॉम। मायरा ने इनके गले में बाजू डाल दिए। क्या डैड अच्छे नहीं है? इनके अकब से आवाज़ उभरी और मायरा एकदम पीछे पलटते हुए हंसी और इनके कंधे से लगी। डैड तो सबसे अच्छे हैं। बस बस रहने दो ये मुंह देखे की मोहब्बत, असल प्यार तो तुम लोगों को अपनी माँ से है। अरे नहीं डैड, आप दोनों ही हमारे लिए एक जैसी हैं, किसी एक को चुनना बहुत मुश्किल काम है। मायरा इन दोनों की मोहब्बत से देखते हुए बोली। रायना कहा? इन्होंने कुर्सी खींच कर बैठते हुए पूछा। यूनिवर्सिटी? इतनी जल्दी? इन्होंने क्लॉक देखा। जल्दी नहीं बल्कि लेट। आज वो अपने टाइम से काफ़ी लेट हो गई थी, इसलिए बगैर नाश्ते के चली गई। मायरा भी इनके बराबर कुर्सी खींच कर बैठ गई और शाइस्ता बेगम उठकर मुलाजमा से शौहर के लिए नाश्ता लगवाने लगी। दोनों बाप बेटी जैसे बैठे बातें कर रहे थे। वो सुबह काफ़ी जल्दी उठ जाता था, किसी को इसे जगाने की ज़रूरत पेश नहीं आती थी। घर में होना, घर से बाहर। रात को चाहे वो कितना लेट सोता लेकिन सुबह जल्दी उठ जाता था। हॉस्टल आकर भी इसकी यही रूटीन थी। इसकी नींद सुबह सवेरे रात की स्याही के साथ रुखसत हो जाती थी। इसने कभी किसी को उठाने की जहमत नहीं दी। यही वजह थी कि जब से वो यहाँ आया था अपने दोस्तों से पहले यूनिवर्सिटी पहुँच जाता था। हंसी, वो हंसी। अरे यार सुनो तो। जैगम और वली दोनों इसे पुकारते हुए करीब आए। वो लॉन में बैठा कुछ पढ़ रहा था शायद। कुछ सुनाओगे तो सुनूंगा ना। इसने किताब बंद करते हुए जैगम को घूरा। यार मैंने आज अपने डिपार्टमेंट में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की देखी है। वो क्लासरूम की तरफ जा रही है, चलो मेरे साथ, हम भी चलते हैं। जैगम ने बेकरारी से कहा। बस एक खूबसूरत लड़की देख लियो लट्टू हो गए? हंसी ने मजाक उड़ाया। तो और क्या करूँ? जैगम झंझलाया। पता करो पहले कि वो कौन है, नाम क्या, किस डिपार्टमेंट से है, सिंगल है या डबल, नरम है या सख्त। ये ना हो कि तुम इसका सैंडल खा के माथे पर गोमड़ बना के आ जाओ। हंसी की बात पे वलीद भी हंस पड़ा। जैगम में से मजाक पर इन दोनों को घूरने लगा। जब तक मैं सारी मालूमात इकट्ठी करूँगा ना तब तक इस हसीना को कोई और ले उड़ेगा। तो यार तुम अपनी सर्विस तेज़ करो ना, इसलिए तो तुम्हारे पास आया। लेकिन तुम, जैगम खफा होने लगा। यहाँ क्या हो रहा है? तौसीफ़, अब्बास, वलीद और अली चारों ही वहाँ चले आए। लॉन में इनका ग्रुप एक टोले की शक्ल में बैठ चुका था। मोहतरम जैगम साहब को अभी भी खड़े खड़े एक लड़की पसंद आ गई। हंसी ने छेड़ने वाले अंदाज से कहा। है वाकई? तौसीफ़ को चंबा हुआ। क्यों तुम इतने हैरान क्यों हो रहे हो? जैगम ने तौसीफ़ को खा जाने नज़रों से देखा। क्या तुम भी लड़कियों में इंटरेस्ट लेते हो? तौसीफ़ का सवाल तमस कर लिए हुए था। जैगम सुलग उठा। क्यों, क्या मैं मर्द नहीं हूँ? अभी कुछ कह नहीं सकता, तौसीफ़ ने बेनियारी से बोला। तौसीफ़, जैगम एकदम इस पर चढ़ दौड़ा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तेरी लचकदार कमर तोड़ के रख दूंगा। जैगम ने तौसीफ़ को तो बोझ लिया। वो इसके घूंसे खाते हुए भी हंसे जा रहा था। और वलीद रोक इस चुड़ैल नुमा मर्द को। तौसीफ़ ने बिलाकर दहाई दे डाली। ओए होए, चुड़ैल नुमा मर्द, तुझे इस चुड़ैल से अब अल्लाह ही बचाए। अली ने कानों को हाथ लगाते हुए कहा। तूने मेरी मर्दानगी पर शक किया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरी गैरत को ललकारा है। जैगम अभी तक तौसीफ़ को दबोचे हुए था। यार शक कब किया? मैंने तो पूरे यकीन के साथ। तौसीफ़ बोलने से बाज न आया। बाकी सब हंसते हुए लोटपोट हो गए। तेरे यकीन की ऐसी की तैसी। वो दोनों गुत्थम गुत्था हो चुके थे। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि कैंटीन किस तरफ है? आसमानी आवाज़ पर वो दोनों रेशम की गुत्थी की तरह उलझते हुए एकदम सीधे हो गए। अलबत्ता हालत दोनों की खराब थी, हुलिये बिगड़े हुए थे। जैगम आंखें फैलाए पट पट इस लड़की को देख रहा था। यही तो थी वो हसीना। जी आइए, मैं भी कैंटीन की तरफ ही जा रहा हूँ। हंसी अपनी किताब और मोबाइल उठाकर बड़ी सहूलत से इस लड़की के साथ चल दिया। हंसी, इतना याद रखना पहले बात मैंने की थी। जैगम पीछे से चिल्ला और इसे बात करने का इशारा दी, जिसको वो सुनी अनसुनी कर गया। आप गुजरात के रहने वाले हैं? हूँ तो ज़रूरी सुनेगा तेरी। नहीं, मैं लाहौर से आया। कितना अरसा हो गया? बस कुछ ही अरसा हुआ। हॉस्टल में रहते हैं? वही एक ठिकाना। आप हमारे घर आइएगा ना। इस लड़की ने खड़े खड़े से दावत दे डाली। वो अंदर हैरान हुआ। जी, जी हाँ, आप यहाँ मेहमान और वापस लाहौर जाकर क्या सोचेंगे कि गुजरात में किसी ने मेहमान नवाजी नहीं की। वो लड़की काफ़ी पुरस्मात थी। वो इस तरह बात करती जैसे पहले से आश। आप कहाँ रहती हैं? वो पूछने पर मजबूर हो गया। यहीं गुजरात में। दरअसल मैं मुर्गसार कॉलेज में पढ़ती थी, अभी हाल ही में कॉलेज से फारिग हुई हूँ। मैं एक साल रेस्ट करना चाह रही थी लेकिन अब्बू जी ने मेरे इनकार के बावजूद यूओजी में
ایڈمیشن کروا دیا، آج یونیورسٹی پہلی بار آئی ہوں، اس نے کافی تفصیل اور لاپرواہی سے بتایا۔ آپ کا نام؟ بالآخر سے پوچھنا ہی پڑا۔ آمنہ، اس لڑکی کی لاپرواہی ہنوز تھی۔ اور آپ کا؟ جواباً وہ بھی پوچھ بیٹھی۔ حسن علی، وہ کافی سنجیدگی سے بولا۔ کس ڈپارٹمنٹ سے؟ وہ سوال کی گئی جا رہی تھی۔ بی ایس سی آنرز میں، سی ایس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے۔ بی ایس آنرز میں سی ایس آئی ٹی ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ ارے واہ، میں بھی اسی ڈپارٹمنٹ سے ہوں۔ آپ کا بھی یقیناً فرسٹ سیمسٹر اور میرا بھی، ہم لوگ تو پھر کلاس فیلو ہوئے نا۔ وہ بے انتہا خوش ہوئی تھی اور ہنسی سے آنکھیں پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ کلاس فیلو؟ وہ سن کر خوش نہیں ہوا تھا، بس نارملی، البتہ وہ خوش نظر آ رہی تھی، اس کی نیت و سوچ صاف تھی، اس لیے وہ اتنی مخلص اور لاپرواہ نظر آ رہی تھی۔ اور پہلے روز یونیورسٹی آنے پر حسن کی صورت میں ایک مہذب سا دوست پا کر بہت خوش اور ایکسائٹیڈ ہو رہی تھی۔ بیٹھی نا حسی صاحب، کیا لیں گے آپ؟ اس نے کینٹین آتے یوں کہا جیسے وہ اس کا واقعی مہمان ہو۔ پھر وہ گھنٹہ بھر اس کے پاس بیٹھی اور جاتے جاتے دوستی کا رشتہ پکا کر کے اٹھی تھی، اور اس کے جانے کے بعد حسی دونوں ہاتھوں میں سر تھام کے بیٹھ گیا۔ ہنسی یار، کوئی بات بنی؟ زیکم بوتل کے جن کی طرح حاضر ہوا اس کے پیچھے باقی سب۔ بات نہیں بنی بلکہ باتیں بنی ہیں، باتیں، وہ ایک دم چلا کے بولا۔ ہیں کیا مطلب؟ زیکم ناسمجھی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ پورا 1 گھنٹہ میرا دماغ چاٹ کے گئی لیکن پھر بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہنسی سچ مچ جھنجھلایا پتا۔ لیکن کیوں؟ زیکم کو صدمہ ہوا۔ ارے یار، وہ حسینہ جس کو تو لڑکی سمجھ رہا تھا وہ لڑکی نہیں ہے۔ ہنسی کوفت اور بیزاری سے بولا۔ ہائے میں مر گیا، کیا ہے وہ؟ زیکم نے سینے پر ہاتھ مارا۔ وہ درویش ہے، درویش۔ اس نے عام لڑکیوں کی طرح کچھ بھی نہیں چھپایا، سب کچھ بتا گئی، اپنا نام، اپنا گھر، اپنا کالج، اپنے ماں باپ، بہن بھائی، اور مجھ سے دوستی کر کے مجھے اپنے گھر بھی انوائٹ کر گئی ہے، وہ بھی پہلی ملاقات میں۔ کیا کبھی کسی لڑکی نے ایسا کیا؟ حسی نے زیکم سے پوچھا۔ ہائے میں لٹ گیا، ہائے میں برباد ہو گیا، ہائے میں ایک درویش تے مار مٹا، ایک درویشن تے مار گیا۔ زیکم کا ماتم جاری تھا۔ اس سے تو بہتر تھا کہ ڈوب کے مر جاتا۔ توصیف نے لک مار دیا۔ کال تو صحیح ہے، خود ڈوب کے مرا یا نہ مرا لیکن تجھے مار دوں گا۔ آج تیری خیر نہیں۔ اوئے ہوئے، زیکم توصیف کے پیچھے لگا اور لوگ انہیں روکتے رہ گئے۔ باقی کا پورا دن درویشن کے ذکر میں گزرا تھا۔ بس یار زیکم، حوصلہ کر، تیری قسمت ہی ماڑی ہے۔ ولید نے اس کا کندھا تھپکا۔ اللہ تجھے صبر جمیل عطا فرمائے۔ علی نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ فکر نہ کرو، اللہ اور دے دے گا، یونیورسٹی بھری پڑی ہے، بس اس کو اب اپنی بہن کا رتبہ دے دو۔ عباس بھی شامل ہوا۔ انہوں نے زیکم کا ناک میں دم کر رکھا تھا اور وہ خون کے گھونٹ پیتا ان کے مذاق سنتا رہا۔ ہنسی تو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چھیڑ رہا تھا۔ آج سنڈے تھا، وہ لوگ یونیورسٹی سے آف ہونے کی وجہ سے بہت ریلیکس فیل کر رہے تھے، اور آج تو موسم بھی کافی عاشقانہ تھا۔ ان سب لڑکوں نے مل کر کنارہ ریسٹورنٹ پر انجوائمنٹ کا پروگرام بنا لیا۔ ان کے تیار ہوتے موسم اچھا خاصا ابرولود ہو چکا تھا۔ جیسے ہنسی تیار ہو کر ہاسٹل سے گاڑی کے لیے نکلا، اچانک دھواں دھار بارش شروع ہو گئی۔ دن میں بھی رات کا سا سما بن گیا، سنسان روڈ اور بھی سنسان لگنے لگے۔ وہ جیسے ہی سنسان علاقے سے نکل کر آبادی میں داخل ہوا، کسی نے اسے ہاتھ ہلا کر رکنے کا کہا۔ پہلے تو اس کا دل چاہ کے نظر انداز کر کے گزر گیا، لیکن اچانک اسے کسی کی مجبوری کا خیال کر کے کچھ رحم آیا اور گاڑی روک دی۔ وہ لڑکی لپکتی بھی قریب آئی، اس نے گاڑی کا شیشہ فولڈ کر دیا۔ سر، میری گاڑی خراب ہوگی، کیا آپ مجھے ماڈل ٹاؤن تک ڈراپ کر سکتے ہیں؟ وہ لڑکی بارش میں کھڑی مکمل طور پر بھیگ چکی تھی۔ کچھ ہی دور سڑک سائڈ پر اس کی گاڑی بھی کھڑی تھی۔ حسی نے ایک نظر اس لڑکی کو سر تپا دے کر ہاتھ بڑھا کر دوسری سائڈ کا فرنٹ ڈور کھول دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی دوسری سائڈ پر آئی اور اندر بیٹھ گئی۔ اس کے بیٹھتے اس نے گاڑی دوبارہ سٹارٹ کر دی، البتہ گاڑی کی سپیڈ خاصی کم تھی، شاید وہ اس لڑکی کو سنبھل کر بیٹھنے کا موقع فراہم کر رہا تھا۔ تھینک یو سو مچ سر، آپ نے مجھے لفٹ دے دی، ورنہ مجھے تو دور دور تو کوئی مکان نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ اپنے چہرے سے بارش کا پانی پہنچتے ہوئے اس کی طرف متوجہ بھی۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں میڈم، گاڑیاں تو کافی گزر رہی ہیں، اس نے اس لڑکی کی بات کو جھٹلایا۔ جی ہاں، گاڑیاں گزری ہیں، مگر وینز اور بسز، جبکہ میں اپنے ایسے حلیے میں کسی بس یا وین میں سوار ہو کر لوگوں کو اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی تھی۔ وہ گلے میں جھولتا دوپٹہ اپنے ارد گرد پھیلا چکی تھی۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں روکا؟ متوجہ تو میں بھی ہو سکتا ہوں۔ اس نے گردن موڑ کر بغور اس لڑکی کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ ایسے نہیں ہیں، اس کے لہجے میں یقین تھا۔ آپ مجھے کیسے جانتے کہ میں ایسا نہیں ہوں؟ ہنسی کو حیرانی ہوئی۔ آپ یو او جی میں پڑھتے ہیں اور میں نے آپ کو کئی بار آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں دیکھا ہے۔ ابھی میں نے آپ کی گاڑی دیکھ کر ہی آپ سے لفٹ مانگی، ورنہ کوئی اور ہوتا تو شاید میں ایسا نہ کرتی۔ وہ لڑکی یقیناً سچ بول رہی تھی، اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اوہ، اس نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے او کو تھوڑا لمبا کھینچا۔ کافی سمجھدار لگتی ہیں، اس نے سراہا اور وہ ایک دم کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ حالانکہ میرے سارے قریبی جاننے والے مجھے اوہو، پر کا ہی پٹھا آ گیا۔ کوئی نہیں، ایسے بھی پٹھے ہو جانے۔ مجھے بے وقوف کہتے ہیں۔ غلط کہتے ہیں، آپ بہت گہرائی سے سوچنے والوں میں سے، اور ایسے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، بس بے وقوفی کا ٹائٹل لگا لیتے ہیں خود پر۔ اس نے اپنا تجزیہ بیان کیا۔ بس جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں بھلا؟ وہ کندھے اچکا کر مسکرائی۔ نام پوچھ سکتا ہوں؟ وہ دلچسپی سے بولا۔ نام کے بعد آپ اور بھی بہت کچھ پوچھیں گے، وہ مسکراہٹ کے دوران بولی۔ مثلاً؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ مثلاً میرے گھر کے بارے میں، میرے بہن بھائی، ماں باپ کے بارے میں، میرے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں، اور بھی بہت سی باتیں جو بات کو آگے بڑھانے کا سبب بن سکے۔ وہ لڑکوں کی عادت پر چوٹ کرتے ہوئے چھیڑی تھی۔ اگر میں بات بڑھانے کے لیے ایسا کروں تو میڈم، میرے گلے پڑنے کے لیے آپ نے بھی تو ڈرامہ کیا نا۔ اگر لڑکے ایسا کام کرتے تو لڑکے کون سے پیچھے ہیں؟ اس نے بھی پل میں حساب بے باک کیا، وہ سٹ پٹا کے رہ گئی۔
یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ جو تھوڑی دیر پہلے آپ کہہ رہی تھی، وہ اطمینان سے بولا۔ برا لگا آپ کو؟ وائسکی سے بولی جیسے آپ کو لگا وہ بھی ادھار رکھنے والا نہیں تھا۔ سوری، اٹس اوکے۔ وہ سر جھٹک کر گاڑی ماڈل ٹاؤن کی طرف موڑ چکا تھا۔ میرا نام جو ہے۔ اپنے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچ کر گاڑی سے اترنے سے پہلے اس نے اپنا نام بتا دیا۔ مجھے ہنسی کہتے ہیں، پورا نام حسن علی۔ جو کی آنکھوں کا سوال پڑھ کر اسے بھی اپنا نام بتانا پڑا۔ ویسے میں نے لگ گیا اسی کی ہڈی ذہانہ دی دیوی جوجو ہی ہونی۔ اوکے مسٹر ہسی، میں آپ سے کل ملوں گی۔ اس وقت میں اپنے ایک دوست کے گھر ملنے کے لیے آئی ہوں، آپ سے تفصیل سے بات ہوگی۔ آپ سے مل کر بہت اچھا لگا، جو کہتے ہوئے گاڑی سے اتر گئی۔ نہ جانے کیوں ہنسی بے ساختہ مسکرائے۔ تب تک جو کی دوست رائنا حیدر اپنے گھر کا گیٹ کھول چکی تھی۔ اس کے ہاتھ میں چھتری تھی۔ وہ کبھی جو کو کبھی گاڑی میں بیٹھے ہنسی کو دیکھ رہی تھی اور رائنا حیدر پر سرسی سی نگاہ ڈال کر گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ اسے پتہ تھا اس کی دوست کنارہ پر اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ چلو پھر جاؤ دوستاں کول۔ ایک اور گرل فرینڈ؟ توصیف اسے رشک بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ہماری قسمت ہی کچھ ایسی ہے جناب، لڑکیوں کا یہ آنا جانا تو بس لگا ہی رہتا ہے۔ وہ مشروب کا گلاس اٹھا کر ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کافی شہانہ انداز سے بولا۔ اور وہ پہلے والی فرینڈ کہاں گئی؟ توصیف کو ہر وقت طرف فکر لاحق تھی۔ وہ بھی ساتھ ساتھ ہے کہ تمہاری نئی فرینڈ کو پتہ ہے کہ تم پہلے کئی لڑکیوں سے؟ اس نے باتیں تھوڑی چھوڑی۔ میں کسی سے کچھ نہیں چھپاتا، سب صاف صاف بتا رہا تھا۔ بتاتے تو جس نے دوستی کرنی ہے وہ کرے، جس نے نہیں کرنی وہ شرافت سے پتلی گلی سے نکل جائے، بس بات ختم۔ اس نے کندھے اچکائے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو، کوئی بھی لڑکی آنکھوں دیکھی مکھی کیسے نکل سکتی ہے؟ توصیف انکاری تھا۔ یہ لو، یہ میرا موبائل ہے، جتنے بھی لڑکیوں کے کانٹیکٹ ہیں ان پہ کال کر کے پوچھو کہ میرے بارے میں کیا کچھ جانتی ہے، پھر وہ تمہیں جواب دے دیں گی۔ اس نے اپنا موبائل توصیف کے ہاتھ میں رکھ دیا اور توصیف کی آنکھوں میں مزید حیرانی اتر آئی۔ تو پھر ہم کیوں ابھی تک سنگل گھوم رہے ہیں؟ ہمیں کوئی کیوں نہیں ملی؟ حالانکہ ہمارا تو پہلے کسی کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ یہ تم لوگوں کی اپنی کمزوری ہے۔ کمزوری؟ ہاں یار، اپنی پرسنالٹی پر تھوڑا روب پیدا کرو، تھوڑی جان ڈالو اپنی شخصیت میں۔ اس نے مشورہ دیا۔ سوری یار، ہم پاکستانی ہیرو جیسا روب اور جان نہیں ڈال سکتے۔ اس نے سختی سے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن ہنسی جیسا تو ڈال سکتے ہو نا؟ اس نے زومانی سے کہا۔ کیا مطلب اب تمہیں اس وقت بتاؤں گا جب تمہارے ساتھ کسی لڑکی کی سیٹنگ کراؤں گا۔ حسن نے اس سے وعدہ کیا تھا اور اس کا وعدہ جھوٹا نہیں تھا۔ اس کے توسط سے توصیف اور زیکم کی بھی فرینڈشپ ہو چکی تھی اور اپنی فرینڈز کے ساتھ بہت خوش تھے، اور خوش تو وہ خود بھی تھا۔ اس کا زیادہ ٹائم جو کے ساتھ گزرا تھا آج کل۔ وہ کلاس اٹینڈ کر کے باہر نکلی تو پورے ایس بلاک پہ ایک متلاشی سے نگاہ ڈالی، لیکن اتنے سارا چہروں میں سے کہیں بھی جو کا چہرہ نظر نہیں آیا۔ حالانکہ صبح اس نے جو کو یونیورسٹی کے گیٹ پہ دیکھا تھا، لیکن یونیورسٹی آنے کے بعد اس نے لگاتار 3 لیکچر مس کیے تھے اور اس کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ یہی بات رائنا کے لیے فکر اور تشویش کا باعث بن رہی تھی۔ وہ چند سیکنڈ کچھ سوچنے کے بعد اسے ڈھونڈنے کے لیے نکلا۔ اس کا رخ اے بلاک کی طرف تھا۔ ہائے رائنا، کدھر جا رہی ہو؟ راستے میں اسے فرا مل گئی۔ اے بلاک، اس نے مختصراً کہا۔ آج تمہیں ایک بلاک کی طرف جانے کی فرصت کیسے مل گئی؟ حالانکہ یو کا سب سے پررونق بلاک ہی وہی ہے، پھر بھی تم وہاں ذرا کم ہی جاتی ہو۔ فرا نے حیرانی سے کہا۔ میں یہاں پڑھنے کے لیے آتی ہوں، رونق انجوائے کرنے نہیں۔ رائنا کے جواب میں ایسے ہی ہوتے تھے، دو ٹوک طنزی اور تمسخرانہ۔ ارے یار رائنا، ایک تو تم بھی عجیب سی چیز ہو، ہر بات کا غلط اور برا مطلب نکالتی ہو۔ اینی وے تم مطلب کو چھوڑو، تم یہ بتاؤ تم نے جو کو کہیں دیکھا ہے؟ رائنا بھی آگے پیچھے جو کی تلاش میں تھی۔ دیکھا تو نہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ وہ اے بلاک میں ہوگی۔ میں نے صبح اسے آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حسن کے ساتھ دیکھا تھا، فرا نے اندازاً کہا۔ حسن؟ رائنا نے ناسمجھی سے پوچھا۔ ارے وہی جس کے ساتھ جو کی نئی نئی فرینڈشپ ہوئی ہے، جس کا نک نیم ہنسی ہے، 6 لڑکوں کے گروپ کے ساتھ ہوتا ہے وہ۔ فرا نے اس کی نشانی بتائی۔ او اچھا، رائنا یاد آنے پر او اچھا کو اچھا خاصا کھینچ کے بولی۔ اس کی آنکھوں میں چند روز پہلے کا منظر گھوم کے جب تیز بارش میں جو ہنسی کے ساتھ اس کی گاڑی میں رائنا کے گھر ملنے کے لیے آئی تھی۔ اوکے یار، میں چلتی ہوں، میں نے لائبریری جانا ہے، پھر ملاقات ہوگی۔ فرا ہاتھ ہلا کر آگے بڑھ گئی اور رائنا جو کو ڈھونڈتی کینٹین کی طرف آ گئی۔ کینٹین آگے سے زیادہ ڈھونڈنا نہیں پڑا، ان 6 لڑکوں کا گروپ سامنے براجمان تھا اور 6 لڑکوں کے ساتھ 6 ہی لڑکیاں بھی تھیں جن میں جو بھی شامل تھی۔ رائنا؟ جو اسے دیکھتے ایک دم کھڑی ہوگی۔ میں تمہاری طرف آئی ہوں۔ رائنا نے سب کو متوجہ ہوتے کہ جو سے کہا۔ ہاں یار آؤ نا، بیٹھو یہاں۔ جو نے اپنی جگہ سے بیٹھنے کا کہا۔ بیٹھنے کے لیے نہیں آئی، رائنا سب کو نظر انداز کرتی صرف جو کی طرف متوجہ تھی۔ او سوری یار، ہم سب فرینڈز کی ایک مشترکہ فرینڈشپ پارٹی تھی، اس لیے میں کلاسز اٹینڈ نہیں کر سکی، تمہیں بتانا بھی یاد نہیں رہا۔ آؤ نا، ان سب سے ملو۔ جو نے سب کی طرف اشارہ کیا۔ زیکم علی، توصیف، عباس، ولید اور حسیبی سے دیکھ رہے تھے، پاس ہی آمنہ، انم، ذکیہ، پنکی وغیرہ بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ رائنا نے ان سب پر ایک سرسری اور طائرانہ سی نگاہ ڈالی۔ تم اپنی فرینڈشپ پارٹی سے کب فارغ ہوگی؟ وہ جو کی بات نظر انداز کرتے بولی۔ بس تھوڑی دیر تک ہم لوگ اٹھ ہی رہے۔ جو نے ایک نظر ہنسی کو دیکھا، وہ رائنا کے تپے تپے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جس کے ساتھ یونیورسٹی کے پہلے روز گیٹ پر ٹاکرا ہوا تھا، اور یہ ٹاکرا شاید اس لڑکی کو بھی یاد تھا۔ جب اس نے ہنسی پر ایک نظر ڈالی بھی تو ناگوار نظر ڈالی تھی۔ ہنسی میں چلتی ہوئی کر پھر ملاقات ہوگی۔ جو اپنا بیگ اٹھانے کی غرض سے جھکی۔ بیٹھی رہو، ابھی ہماری پارٹی ختم نہیں ہوئی، تم فرینڈشپ پارٹی ادھوری چھوڑ کر جاؤ گی تو فرینڈشپ بھی ادھوری رہ جائے گی۔ ہنسی نے نپے تلے لہجے میں کہہ کر جو کے قدم روک دیے۔ اس کے دوستوں نے بھی چونک کر دیکھا۔ لیکن ہنسی، مجھے کافی دیر ہو چکی ہے، اب چلنا چاہیے۔ جو رائنا اور ہنسی کے درمیان جذب کھڑی تھی۔ دوستی میں دیر بھی ہوتی ہے اور سویر بھی، دوستی کبھی بھی کچھ بھی نہیں دیکھتی میڈم جوہر آرا۔
हंसी का लहजा सख्त अब इस वक्त जोजो के जाने के हक में नहीं था, लेकिन हंसी। जोजो ने कुछ कहना चाहा। मैं तुम्हें रोक नहीं रहा, बस बता रहा हूँ कैसा भी होता है। हंसी लापरवाही से बोला। जोजो चुप हो गई, फिर इनकार करने की गर्ज से शर्मिंदा सी रायना की तरफ पलटी। लेकिन जैसे सर उठाकर देखा वो हैरान रह गई, रायना वहाँ नहीं थी। जोजो ने ठिठक कर दाएं बाएं देखा और फिर कैंटीन से बाहर झाँका। रायना वापस जा रही थी। न जाने क्यों रायना ने इसे शर्मिंदगी से बचा लिया था और अपनी बात का भरम भी रख लिया था। इससे पहले कि जोजो इनकार करती वो खुद ही वापस मुड़ गई थी, लेकिन जोजो को अब भी अफसोस हो रहा था। अलबत्ता हंसी बहुत खुश था कि इस वक्त जोजो ने इसका इंतखाब किया था। लाख दी लानत है जोजो दे उत्ते। इदा दी लानतियां भी होंदियां ने। शाम 5 बजे का वक्त था। वो शावर लेकर निकली तो नज़र टेरेस की तरफ उठ गई। मौसम की खुशगवारी है तो एक नज़र में फाँप की बालों को तौलिए से खुश करके अच्छी तरह हेयर ब्रश से समाकर चेहरे पर आए बालों की बैंड से पीछे हटाते हुए वो टेरेस से पर चली गई। ठंडी मीठी हवा इसके इस्तकबाल करती गुजर के और हवा का लमस अपने चेहरे पर महसूस करके बेसाख्ता मुस्कुराई। क्या हो रहा है जनाब? मायरा दबे कदम इसके पीछे टेरेस पर ही चली आई थी। मौसम इंजॉय, इसने मसूर कुन लहजे में कहा। अकेले अकेले? मायरा ने छेड़ा। अकेले में? अकेले हैं तो अकेले इंजॉय करेंगे ना। अब आपकी तरह तो नहीं कि जब मंगेतर की याद आती है फ़ोन पर आपकी तन्हाइयाँ बांटने चला आता। मायरा अंगेज थी। इसकी मंगनी अपने खाला के बेटे से हुई थी। वो कनाडा में होता तो इन लोग की अक्सर फ़ोन पर बातचीत होती रहती थी। तो क्या ख्याल है तुम्हारी तन्हाइयाँ बांटने के लिए भी कुछ बंदोबस्त कर दे? मायरा ने जुमानी अंदाज में कहा। अरे तौबा तौबा, अल्लाह का खौफ करे मायरा भी, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। इसने फ़ौरन कानों को हाथ लगाया। क्यों भाई, क्यों नहीं सोच सकती? मायरा ने ताज्जुब से पूछा। अरे भाई, अभी तो मेरी स्टडी कंप्लीट होने में भी तकरीबन 3 साल बाकी हैं और इंशाल्लाह 3 साल बाद भी मेरे शादी वादी का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं स्टडी के बाद जॉब की तरजीह दूंगी। रायना ने सख्ती से कहा। चलो देखते हैं क्या होता है, तुम्हारी मर्जी चलती है फिर मामा की। मायरा ने कंधे उचकाए। बस आपकी शादी हो जाए हमारे लिए यही सबसे बड़ी खुशी की बात है। रायना ने मायरा को छेड़ने वाले अंदाज में कहा। क्यों, क्या मैं ही कुर्बानी का बकरा हूँ? ना तुम शादी के लिए तैयार हो ना ही वो अरीब साहब। मायरा ने रायना ने अपने भाई का नाम लिया। बस हमने अपनी फैमिली फ़िलहाल तुम्हारे ज़रिए बढ़ानी है। रायना ने मुस्कुराहट रोक रखी थी। माशाल्लाह, क्या ख्यालात है मोहतरमा के। मुंह धो रखो, ये ना हो कि मामा से कह के मैं तभी शादी करूँ जब रायना की होगी। उफ खुदा, ऐसा जुल्म कभी मत करना। रायना ने खौफ से दहल कर मायरा हंस पड़ी। यूं ही हंसते हंसते इनकी नज़र गेट पर गई। चौकीदार ने गेट खोला था और जोजो की गाड़ी अंदर आकर रुकी। रायना की हंसी को ब्रेक लग गया। इसके चेहरे पर संजीदगी छा गई। अस्सलाम वालेकुम। जोजो इनको देखकर टेरेस पर आ गई। वालेकुम अस्सलाम, मायरा ने जवाब दिया। कैसी हैं आप? फ़ाइन, तुम सुनाओ? मायरा ने भी जवाबन पूछ लिया। वेरी फाइन, जोजो ने भी शाइशी से कहा। ओके, तुम लोग बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। मायरा इन दोनों के कंधे थपक कर चली गई। अब वो दोनों टेरेस पर तन्हा थी। शाम का सांवलापन स्याही में बदल रहा था और हवा में रची खुनकी में इजाफा हो रहा था, लेकिन इस खुनकी के बावजूद रायना को मौसम बहुत भला लग रहा था। हवा के धीमे लमस में एक सरूर था जो दिलो जान से महसूस करी थी। मैं जानती हूँ रायना, तुम मुझसे नाराज़ हो। जोजो ने आहिस्ती से कहना शुरू किया। गलत फहमी है तुम्हारी, वो लापरवाही से बोली। क्या मतलब? जोजो का समझ नहीं आई। मैं नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि नाराज़ होने के लिए कोई रिश्ता चाहिए जो मेरे और तुम्हारे दरमियान नहीं। रायना, जोजो के अंदाज में एहतजाज था, ये बात तुमने ही मुझे बावर करवाई है। प्लीज़ रायना, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं इस वक्त वाकई कश्मकश में थी। सच्चे दोस्त दोस्तों के लिए कश्मकश में नहीं पड़ते बल्कि गड़े गड़े फैसले कर लेते हैं, और इस वक्त तुमसे इंतखाब करना मुश्किल हो गया था कि तुम किसकी बात मानो, मेरी या इस हंसी की। देखो जोजो, पूरी यूनिवर्सिटी में तुम्हारे सिवा मेरा कोई और दोस्त नहीं है, और अगर तुम ही नई दोस्तों के चक्कर में पड़कर ऐसा करोगे तो तुम जान सकते हो कि मैं क्या सोचने पर मजबूर हो जाऊंगी। रायना लफज चबा चबा कर कहती हुई इसकी तरफ मुड़ी। जोजो चुप खड़ी थी क्योंकि वो गलत थी। आई एम सॉरी, वो मध्यम आवाज़ में बोली। इतने लोगों में मुझसे नज़र चुरा लेना और तन्हाई में सॉरी कर लेना मेरे लिए किसी इंसल्ट से कम नहीं है। प्लीज़ रायना, आई एम रियली सॉरी। जोजो हनूस सॉरी किए जा रही थी। जोजो, तुम नहीं जानती कि तुम खसारे की तरफ जा रही हो। वो तुम्हें पागल बना रहा, फ्लर्ट कर रहा है तुम्हारे साथ। रायना कहने से बाज नहीं है। वो जो भी कर रहा है, मगर मैं इतना जानती हूँ कि मैं इससे मोहब्बत कर रही हूँ। जोजो का लहजा ठहरा हुआ था। ए बेचारी अक्लमंद है। रायना ठिठक गई। इसने चौंक कर जोजो का चेहरा देखा। यानी वही कुछ हो रहा था जो रायना पहले से सोच रही थी। जोजो के चेहरे पर बिखरे रंग को उसको जाके रंगों से ज़्यादा हसीन लग रहे थे। जो किसी दी रब्बो आई हो ना तो फिर इदा दी करतूत ही खोलता होंगे। वो बैठ के से टेक लगाए बैठा, गोद में लैपटॉप रखे किसी के साथ चैटिंग में मसरूफ था जब इसके मोबाइल पर वाइब्रेशन हुई। इसका मोबाइल हमेशा वाइब्रेशन पर रहता था। इसे रिंगटोन से खासी चीड़ होती थी। इसने हाथ बढ़ाकर पैड पर मोबाइल उठाकर देखा, किसी अननोन नंबर से मैसेजेस थे जिस पर पोइट्री तहरीर थी। इसने बिना पढ़े मोबाइल साइड पर डाल दिया और इसकी उंगलियां दोबारा से लैपटॉप की कीज़ पर हरकत करने लगी और अभी चंद सेकंड गुजरे थे कि मोबाइल पर लगातार वाइब्रेशन होने लगी। इसने दोबारा मोबाइल उठाकर स्क्रीन देखी। इसी अनजान नंबर से कॉल आ रही थी। मजबूरन इसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो, इसने मसरूफ सी आवाज़ में कहा। अस्सलाम वालेकुम, दूसरी तरफ बहुत खूबसूरत सी आवाज़ थी। वालेकुम अस्सलाम, आप कौन? वो एक लम्हे के लिए लैपटॉप से अपना हाथ हटा चुका था। मैं अनिला बात कर रही हूँ, क्या हसन से बात हो सकती है? वो बहुत नरम लहजे में पूछ रही थी। जी बोल रहा हूँ, आपका तारुफ? वो काफ़ी संजीदा था। मैं यूएजी में पढ़ती हूँ, आपको वहीं देखा था। इसने तारुफ का पहला सिरा इसके हाथ में था। अच्छा अच्छा, वो सर हिलाते हुए बोला। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? बस लगन सच्ची थी, मिल गया। वो फ्रेश अंदाज में बोली। फिर भी आपके दोस्त वलीद और अली से लिए। वो इसके इसरार से मजबूर होगी। ओह, तो ये नया काम उन्होंने किया? क्यों, आपको बुरा लगा? लगना भी चाहिए। वो लापरवाह था। मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ।
लड़की खासी उजरत पसंद थी, हंसी बेसाख्ता मुस्कुराया। मेरे बारे में जाने बगैर वो दिलचस्पी से पूछ रहा था। क्या मतलब है आपका? अनीला चौंकी। मतलब ये कि मेरे बारे में जानने के बाद अपना दोस्ती के लिए बढ़ावा जाने वाला हाथ वापस खींच लेंगी। वो दोबारा से लैपटॉप की कीज प्रेस करने लगा और बाएं हाथ से फ़ोन कॉल सुन रहा था। मैं फैसला एक बार करती हूँ और हमेशा के लिए करती हूँ। हाथ पीछे हटाना या कदम पीछे हटाना मेरा शेवा नहीं। वो मजबूत लहजे बोली। हंसी वाकई मुतासिर वाली लड़की हंसी दिल गुर्दे वाली थी। देखिए मिस अनीला, मैं बहुत अच्छा इंसान नहीं हूँ, लेकिन मैं बहुत बुरा इंसान भी नहीं हूँ। मैं हर अच्छे इंसान के साथ अच्छा और हर बुरे इंसान के साथ बुरा। अलबत्ता हर चीज़ से कतई नज़र मैं दोस्तों की बहुत कदर करता हूँ। मेरे दोस्त मेरे लिए बहुत अहम है, लड़के भी लड़कियाँ भी। हंसी मजाक से हट के मैं अपने दोस्तों की बहुत इज्जत भी करता हूँ, और मैं अपने हर दोस्त को बताता हूँ कि ज़िंदगी में मैं इनको प्यार, इज्जत और कदर के सिवा और कुछ नहीं दे सकता, और ना ही वो मुझसे कुछ और की डिमांड करें। हंसी बात करते करते ज़रा तौक़ुफ़ के लिए ठहरा। ये सारी बात आपको बताने का मकसद सिर्फ यही कि अगर आप मुझसे फ्रेंडशिप करने के बाद आम लड़के लड़कियों की तरह मोहब्बत या शादी वादी की कोई ख्वाहिश पालेंगी या फिर मुझसे ऐसी कोई उम्मीद रखेंगी, तो आपका इरादा सरासर बेकार होगा। मैंने अगर ज़िंदगी में मोहब्बत की भी तो इंशाल्लाह अपनी बीवी से करूँगा। मेरी मोहब्बत की हकदार वही लड़की होगी जो मेरी बीवी बनकर मेरी ज़िंदगी में आएगी। अलबत्ता मेरी तमाम फीमेल फ्रेंड्स मेरे लिए बहुत खास और बहुत अहम है। मैं इनके लिए दिल और जान से हाजिर हूँ, बस वो दोस्ती के बाद किसी और जज्बे का तकाजा ना करें। हाँ ना, 900 चूबे खा के बिल्ली हाजिर नहीं चली। आप हर किसी दिन चक्कर चलाना, हर चीज़ करनी, फ्लर्ट भी करना, ते बाद च बीवी पारसा चाहिए, ते इश्क मोहब्बत बीवी दे नाल करना। वो बात पहले क्लियर कर देने का आदी थे। इसने आज तक किसी भी लड़की से बात क्लियर के बिना दोस्ती नहीं की थी। वो पहले रोज़ सब कुछ इन पर वाज़ा कर देता था। जोजो वगैरह के साथ भी इसने ऐसे ही किया था, और बनीला के साथ वो इसकी बात सुनने के बाद खामोश हो चुकी थी। वो भी इसकी खामोशी नोट कर चुका था। फ़ोन ऑन रखूँ या बंद कर दूँ? हंसी का लहजा संजीदा और नपातुला सा था। दूसरी तरफ से गहरी सांस लेने के बाद आवाज़ सुनाई दी। ऑन रखें, गोया वो फैसला कर चुकी थी। गुड, आपने मेरी बात को बहुत जल्दी समझ लिया। आई लाइक दैट। वो हल्के से मुस्कुराया। थैंक्स, मैं अगर बात समझ लेती हूँ तो अपनी बात समझा भी लेती हूँ। बहरहाल आपसे बात करके और आपके आदर्श जानकर बहुत खुशी हो रही है। वो तौसीफ़ी कलमात अदा करने लगी। मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। जवाबन वो भी बोल पड़ा। लाने दिया पूरा दे। ओ यार सुन तो सही। तौसीफ़ दूर से कुछ हाय वाय करता आ रहा था। जैगम के बच्चे बहरे हो गए हो क्या? तौसीफ़ चबा कर बोला। आहिस्ता बोलो, मेरे बच्चे भी सो रहे हैं। अपनी भोंडी आवाज़ से इन्हें जगाने की कोशिश मत करो, वरना अगर वो जाग गए तो मिस्र की मम्मी की तरह हशर उठा देंगे, निकल जाएंगे तुमको। जैगम ने इसे डराने के लिए कहा। भाड़ में गए तुम और तुम्हारे बच्चे, तुम्हें तो कोई बात बतानी फजूल है। तौसीफ़ नागवारी से बोला। हाँ सुना मेरी बचड़ी, ऐसी क्या बात है जो तेरे पेट में ठहर नहीं रही? जैगम ने इसकी तरफ मतवज्जा होते हुए गोया एहसान किया। ओए मनहूस, तू मुझे बचड़ी बना बना के खुद खुश होता रहेगा, और उधर वो हसन साहब हर रोज़ एक नई बचड़ी के साथ मौज उड़ाता रहेगा। जानते हो ना मौज का मतलब? तौसीफ़ ने जल कर कहा और एक चिंगारी जैगम के सीने में भी फेंकी थी। ये क्या कह रहे हो, नई बचड़ी? जैगम की आवाज़ सदमे से बंद होने लगी। हाँ नई, बिल्कुल नई नकोर। तौसीफ़ मसाला लगा के बोला। तुमने कहाँ देखी? जैगम तो जैसे रोहानसा हो रहा था। यूएफसी में। तौसीफ़ ने कंधे उचकाए। जैगम के दिल पर हाथ पड़ा। हस्सी विद बचड़ी, वो भी यूएफसी में? लेकिन यार इसे वो मिली कहाँ? वो तो वीकेंड पर घर गया हुआ था। जैगम ने हैरानी से पूछा। ये तो वही बता सकता है कि इसे नई नकोर बच्ची कहाँ से मिली। तौसीफ़ ने कंधे उचकाए। वैसे अल्लाह भला करे, बहुत कमाल की है। वाह क्या हुस्न है, इंतहाई खूबसूरत, पढ़ी लिखी और स्टाइलिश। उफ, इसे देखकर ही मेरा दिल खुश हो गया। और वो कमीना इसके करीब बैठकर इससे बातें कर करके इसे देख देख कर शराब हो रहा होगा। तौसीफ़ के मुंह में पानी आ गया। वो रश्क भरे अंदाज में आ भरी थी। चलो हम भी चलते हैं। जैगम उठ खड़ा हुआ। कहाँ? तौसीफ़ ने हैरानी से पूछा। यूएफसी और कहाँ? जैगम ने घूरा। मगर क्यों? ये देखने को इस मासूम लड़की पर कौन कौन से जाल फेंक रहा है? हा हा हा, मासूम। तौसीफ़ कहकर लगा कर यार वो लड़की मासूम होती तो तेरे पास आती, तुझे अपना दोस्त बनाती, इस कमीने के पास न जाती। तौसीफ़ बेचारा सच ही तो कह रहा था। क्या मतलब है तुम्हारा? जैगम ने घूर के पूछा। यार मेरा मतलब है कि लड़की बड़ी खर्राट है, इसलिए तो इसने हंसी का इंतखाब किया, वरना डिपार्टमेंट में तुम्हारे जैसे खूबरू नौजवान भी तो मौजूद है। वो बात नहीं, अलबत्ता लहजा बदल गया। हाँ यार ये भी सोचने की बात है, इस लड़की ने तुम्हारा और मेरा इंतखाब क्यों नहीं किया? शायद वो तुम्हारी लचकीली कमर देखकर करीब ना आई हो। जैगम ने भी बातों बातों में हिसाब बराबर कर लिया। और तुम्हारे चेहरे पर तो वो दूर से किसी चुड़ैल का अक्स देखकर चली गई होगी। मैं इंशाल्लाह अगली जुमेरात को तुम्हें बंगाली आमिल बाबा के पास लेकर जाने वाला हूँ। ओए होए, वही तुम्हारे अंदर समाई चुड़ैल का खात्मा करेगा। तौसीफ़ ने पूरा जम लहजे में इत्मीनान से कहा। बहुत ख़तरनाक ज़ाहिम में गई तौसीफ़ थे। यार क्या हो रहा है यहाँ? तुम दोनों अकेले बैठे भी झगड़ते रहते हो। फरीद और अब्बास भी वहीं चले। झगड़ नहीं रहे, अपनी अपनी किस्मतों पर मातम करें। यार साड़ी किस्मत ते शुरू तो ही माड़ी है। अल्लाह ते ने बहुते माड़े नसीब लिखे ने साडे। अली गमगीन लहजे में बोलते हुए पंजाबी देहाती औरतों की तरह सर पकड़े बैठा था। हाँ यार तेरे नसीब तो वाकई बहुत माड़े हैं। अल्लाह ने खूबसूरत नौजवान गबरू तो बना दिया, कद छोटा दे दिया, और अब वही अली हमारे दरमियान चलता फिरता रहता है और अपने नसीब को रोता रहता है। क्या हो जाता जो बेनसीबे का कद थोड़ा और बड़ा हो जाता? वलीद ने सुर्खी का इजहार किया। अली का दिल चाहा अपने सेहतमंद वजूद लेकर वलीद के सीने में बैठ जाए और इसका दम निकाल दे। आखिर नाजुक सी तो जान थी इसकी। मेरा तो सिर्फ कद छोटा ना, तू तो है ही चलती फिरती शाद वाला पीर दी चुई। अली ने भी उधार रखना गवारा नहीं किया। वो और
ولید شاہ والا پیر دی چوئی کے لائے جانے پر بل بلا اٹھا۔ اس سے پہلے کہ وہاں کوئی جنگ و جدل کا سما پیدا ہوتا، وہاں جو چلیے ہنسی کا ہے۔ وہ سارے گروپ میں سے سینا دیکھ کر تھوڑا متفکر ہوئی۔ یہ تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے، زیگم تیزی سے بولا۔ پتہ تو ہے، ویکینڈ پہ گھر گیا ہوا تھا، میرا خیال تھا کہ آج آ گیا ہوگا، جو بغیر نروس ہوئے بول رہی تھی۔ آپ کا خیال درست ہے، زیگم مسکرائے، وہ کچھ سوچ رہا تھا۔ اچھا وہ آ چکا ہے؟ جی ہاں آ چکا ہے، آپ کا ہی پوچھ رہا تھا۔ تو پھر کہاں ہے وہ؟ جو کو بے چینی ہونے لگی۔ UFC، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ اوکے میں بھی وہیں چلتی ہوں۔ جو تیری سے پلٹ گئی اور توصیف وغیرہ نے ایک دم زیگم کو دیکھا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ ان کی حیرت بجاتی۔ رنگ میں بھنگ ڈالا ہے، زیگم شرارت سے مسکرایا۔ رنگ میں بھنگ نہیں ڈالا بلکہ تم نے اپنی شامت بلوائی ہے، اب وہ جو تمہارے رنگ میں بھنگ ڈالے گا تم دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے، اتنا سوچ لو ابھی سے، ولید نے اسے انفارم کیا۔ بغیر تھا نہ ٹولا سارا۔ رائنا بہت ہی ریزرو قسم کی لڑکی تھی، بہت زیادہ بولنا اور بے تکان بولنے سے ہرگز پسند نہیں تھا، نہ ہی اسے بات بات پر ہنسنا اور کہکے لگانا اچھا لگتا تھا۔ اسے ہر اس چیز سے چڑ تھی جو آج کل کے لڑکے لڑکی میں موجود تھی، فون پر گھنٹہ بھر دوستوں سے باتیں کرنا، لڑکے لڑکیوں کی فرینڈ شپ، ایک دوسرے کو تحفے تحائف دینا اور پڑھائی کے نام پر گھر والوں کی آنکھوں میں دھول چونک کر عیاشی اور موج مستی کرنا اسے سخت زہر لگتا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی عزت کی پاسداری کرنے اور اپنی حدود میں رہنے والی لڑکی تھی، اور جیسی وہ خود تھی دوسروں کو بھی ویسے دیکھنا چاہتی تھی۔ یونیورسٹی میں پہلے روز اس کی دوست بننے والی جو اسے واقعی پسند تو تھی، مگر جو کی کچھ باتیں اسے ناپسند بھی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ جو بھی اسی کی طرح رہنا سہنا سیکھ جائے، مگر جو من موجی لڑکی تھی۔ وہ وہی کرتی تھی جو اس کے دل میں آتا تھا۔ اس کے دل میں آیا رائنا سے دوستی کر لے، اس نے کر لی۔ اس کے دل میں آیا ہنسی سے دوستی کر لے، اس نے وہ بھی کر لی۔ بس بات یہ تھی کہ اپنے دل کو انکار نہیں کر سکتی تھی، جو دل چاہتا وہ کرتی تھی، لیکن رائنا کے پاس دل کے نہیں دماغ کے فیصلے ہوا کرتے تھے، اور آج کل اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ جو ہنسی سے دوستی ختم کر دے، مگر یہ بات جو سے کہہ نہیں پا رہی تھی۔ لیکن آج موقع مل گیا، رائنا کی گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی تھی، اس لیے اس نے جو سے کہہ دی کہ مجھے پک کر لو، اور جو حکم بجا لائی تھی۔ ٹھیک 8 بجے وہ رائنا کے گیٹ پر ہارن دے رہی تھی۔ رائنا پہلے سے تیار بیٹھی تھی، فوراً باہر آ گئی۔ ماشاءاللہ آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، کہاں کی تیاری ہے؟ رائنا جو کو دیکھتے پوچھ رہی تھی۔ آج 12 اکتوبر ہے، جو ہلکے سے مسکرا کر بولی۔ 12 اکتوبر میں کیا خاص ہے؟ رائنا کو بھلا کیا علم تھا، 12 اکتوبر میں تو خاص بات ہے۔ جو کے چہرے پر دلکشی تھی، نرم گرم جذبات کی۔ کچھ پتہ بھی تو چلے، وہ الجھن سے بولی۔ آج ہنسی کا برتھ ڈے ہے، جو سرشاری سے بولی تھی۔ او، رائنا نے ہونٹ سکیڑتے ہوئے کہا۔ ہنسی بہت اچھا ہے رائنا، جو اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، جو میری ایک بات مانو گی؟ رائنا نے سکرین سے نظر ہٹا کر جو کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ کیا بات؟ جو ونڈو سکرین سے نظریں نہیں ہٹا سکتی تھی، سامنے روڈ پر اچھا خاصا رش تھا۔ ہنسی سے دوستی ختم کر دو، رائنا نے بڑی تیزی سے کہہ دیا، اور جو ایک دم نظر ہٹا کر اسے دیکھنے پر مجبور ہوگی۔ یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ہاں ٹھیک کہہ رہی ہو، جو وہ اچھا نہیں ہے، وہ فلرٹی ہے، وہ کبھی تم سے وفا نہیں کرے گا، رائنا نے سمجھانے کے لیے کہا۔ وہ اچھا نہیں ہے، اس نے مجھے بتایا تھا۔ وہ فلرٹی ہے، اس نے یہ بھی بتایا تھا۔ وہ کبھی مجھ سے وفا نہیں کرے گا، یہ بھی وہ بتاتا ہی رہتا ہے، جو لاپرواہی سے بولی۔ پھر تم نے اس سے دوستی کیوں کر رکھی ہے؟ رائنا کو چنبا ہوا۔ وہ مجھے اچھا لگتا ہے، اس لیے۔ جو ہنوز لاپرواہ تھی۔ ہر بری چیز تمہیں اچھی لگے گی تو تم اسے اپنا لو گی؟ وہ تعجب میں اس نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ہاں اپنا لوں گی، کیونکہ وہ چیز کسی اور کو نہ صحیح مجھے تو اچھی لگ رہی ہے نا، اس نے جواز پیش کیا۔ یہ غلط ہے جو اسی غلط میں میرے دل کی خوشی ہے رائنا، جو اطمینان سے بولی۔ کیا وہ بھی تمہارے لیے ایسا سوچتا ہے؟ وہ میرے لیے کیا سوچتا ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سارے قصے کا انجام کیا ہوگا؟ رائنا کا تعجب برقرار تھا۔ انجام تو صرف اوپر والا ہی جانتا ہے، لیکن اوپر والا یہ تو نہیں جانتا کہ کہتا کہ جانتے بوجھتے اور کھلی آنکھوں سے سب دیکھتے ہوئے کسی گڑھے میں کھو جاؤ۔ پلیز یار رائنا، کیا فلسفہ لے کر بیٹھ گئے؟ چھوڑو، صبح صبح کوئی اور بات کرو۔ جو کے دل و دماغ پر ہنسی کی پرسنالٹی کا سحر چھایا ہوا تھا، ایسی باتیں بھلا کیا اچھی لگ سکتی تھی؟ الٹا ناگواری گزرتی۔ یہ بات چھوڑنے والی نہیں ہے، بہت اہم ہے، تمہیں خود سوچنا چاہیے۔ وہ لڑکا محض فلرٹ کر رہا ہے، تمہیں ایسے دوست سے دور رہنا چاہیے، کل کو تمہیں کوئی نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ رائنا انتہائی حد تک جا کر سوچ رہی تھی۔ رائنا، ہنسی میرے ساتھ فلرٹ کر رہا ہے، یہ فراڈ، اس پہ میں دھیان نہیں دیتی۔ میں صرف یہ دیکھتی ہوں کہ ہنسی میرا دوست ہے اور میرے لیے بہت اہم ہے، میں اسے کسی بھی صورت نہیں چھوڑ سکتی۔ تمہاری یہ بحث لا حاصل ہے، اور ہاں ایک بات اور، ہنسی کردار کا ہلکا نہیں، اپنے کردار کے لحاظ سے جتنی اچھی تم ہو اتنا ہی اچھا وہ بھی ہے، جو کبھی لمٹ نہیں کراس کرتا۔ جو نے دو ٹوک کہتے ہوئے جیسے گفتگو سمیٹی۔ اور لگتا ہے اپنے حوالے سے اس نے تم لوگوں کو اچھا خاصا ٹرین کر رکھا ہے، رائنا تنزیہ بولی۔ ٹرینڈ کرنا ہوتا تو وہ صرف لڑکیوں کو کرتا، بلکہ یہاں تو اس کے دوست لڑکے بھی اس کے گن گاتے، تعریفیں کرتے ہیں۔ اینڈ جسٹ فار یور کائنڈ انفارمیشن، کہ آج تک اس نے خود سے کسی بھی لڑکی کی طرف قدم نہیں بڑھایا۔ لڑکیاں خود ہی سے متوجہ کرتی ہیں اور اسے فرینڈ شپ کرنا چاہتی ہیں۔ میں نے بھی خود ہی پیش قدمی کی تھی، وہ میرے پاس مجھے پھنسانے کے لیے نہیں آیا، میں گئی تھی میں خود، اس نے چبا کر بتایا، اور گیٹ کے باہر گاڑی پارک کر دی۔ جو کے اترنے سے پہلے رائنا اپنی سائڈ کا دروازہ کھول کر اتر گئی، جبکہ جو ہنسی کے لیے لایا جانے والا گفٹ اور پھولوں کا بوکے اٹھا کر اندر آئی، اے بلاک کی سمت پڑ گئی، جہاں اس وقت ہنسی کی برتھ ڈے سیلیبریشن زوروں پر تھی۔ اس کے تمام دوستوں نے اچھی خاصی تیاری کر رکھی تھی، وہ خود بھی بے حد وجیح اور ہینڈسم لگ رہا تھا۔ بلیک جینس پر بلیک ہاف سلیو شرٹ پہنی ہوئی تھی، جس کے فرنٹ پر بڑے بڑے حروف میں لکھا بیڈ بوائے لکھا ہوا تھا۔ آج سبھی لڑکیوں کی نظریں بس اسی پر مرکوز تھی، باوجود کوششوں کے نگاہ ہٹ ہی نہیں رہی تھی۔ انم، انیلا، زکیہ، پنکی، آمنہ اور جو وغیرہ اس کے دائیں بائیں کھڑی تھی، سبھی اس کے لیے گفٹس بھی لائی تھی۔ زیگم، عباس اور توصیف وغیرہ نے سیلیبریشن کے سارے انتظامات اور سارے اخراجات خود کیے تھے، یہاں تک کہ وہ لوگ الگ الگ کیک بھی لے کر آئے تھے۔ ٹیبل پر مختلف سائز کے تقریباً 6 کیک سجے ہوئے تھے۔ سیلیبریشن کا انتظام کینٹین میں کیا گیا تھا، البتہ لنچ کا پروگرام UFC میں رکھا گیا تھا۔
UFC यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात से रिलेटेड इंतहाई खूबसूरत पुरसकून और साफ सुथरे माहौल का एक फास्ट फूड कॉर्नर था, जहाँ रोजाना सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स पेट पूजा करने और टाइम पास करने की गर्ज से आते थे। इसके अलावा अक्सर स्टूडेंट वहाँ अपनी बर्थडे या कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे होते थे, मुझे कोई एंगेजमेंट का, कोई तालीम में कामयाबी का जश्न मना रहा होता था। और आज भी यही हाल था। इसके दोस्तों का पूरा पूरा जश्न मनाने का इरादा था। इन्होंने उधम मचा रखा था। पूरी यूनिवर्सिटी को इल्म हो चुका था कि आज IT डिपार्टमेंट के हसन अली की आज 12 अक्टूबर को बर्थडे। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स भी आते जाते इसे विश कर रहे थे। इसके दोस्तों ने ढिंडोरा पीट के रख दिया था, हालांकि वो रोक भी रहा था, मगर भला परवाह की स्थिति। वो भी इसके साथ शामिल हर ये हल्ला गुल्ला इंजॉय करने लगा। इनकी शरारतें अरूज पर थी। कहाँ? इसने जैगम को मैसेज सेंड किया। ब्लॉक की बैक साइड पर। चंद सेकंड बाद रिप्लाई भी आ गया। क्या कर रहा है? इसने दूसरा मैसेज किया। क्या कर सकता हूँ भला? दूसरा रिप्लाई भी फ़ौरन आया। करने को तो तुम कुछ भी कर सकते हो मेरे यार, ये बताओ साथ कौन है? हसी ने शरारत भरा मैसेज लिखा और साथ ही एक स्माइल का आइकन भी ऐड कर दिया। तुम्हारी भाभी। जैगम ने 2 आइकन ऐड करके भेजे, आंख दबाकर मुस्कुराते हुए। कौन से नंबर वाली? हसन का मैसेज फ़ौरन पहुंचा। दूसरे नंबर वाली यानी सोनिया। जैगम का मैसेज पढ़कर हंसी की लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। सोनिया बहुत ही खूबसूरत और नाज नखरों वाली लड़की थी। इसकी एक बुरी आदत थी कि वो शकी बहुत थी। शुरू शुरू में जब वो इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी से माइग्रेट होकर गुजरात आई तो जैगम इसे देखते फिदा हो गया। वो इतने दिन इससे बात करने के लिए आहें भरता और तरसता रहा। जब इसकी हसरत, इसका शौक देखते हुए तमाम दोस्तों ने ऐसी ऐसी तरकीबें लड़ाई कि सोनिया खुद ब खुद जैगम की तरफ माइल हो गई। लेकिन इसने शक हमेशा साथ रखा कि जैगम की पहले भी लड़कियों के साथ फ्रेंडशिप रह चुकी है। हालांकि जैगम ने 1000 सफाइयाँ दी और 1000 इनकार किया। अब भी अगर वो किसी लड़की के साथ होता तो सोनिया को देखकर फ़ौरन इधर उधर छुप जाता, लेकिन आज कहाँ छिपता जब हसी ने हमला कर दिया था। हसी ने सोनिया के नंबर पर पैसे एक ही मैसेज लिखा कि डियर सोनिया, मीठी मीठी बातें करने से पहले जैगम का मोबाइल चेक करो। इसके मोबाइल के इनबॉक्स और आउटबॉक्स में मौजूद तमाम मैसेजेस पढ़ो। बस इतनी सी बात थी। आग भड़की और जैगम का तिनका तिनका जमा करके बनाया जाने वाला आशियाना जलकर राख हो गया। ओए होए। सोनिया ने जब जैगम की आउटबॉक्स के मैसेज में दूसरे नंबर वाली पढ़ा तो वो काट खाने को दौड़ी। इसका गैज़ो गज़ब से बुरा हाल था। इसके बस में होता तो वो खूनख्वार जंगली बिल्लियों की तरह इस पर झपट पड़ती, लेकिन वो इतने ज़्यादा लोगों में तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी। तो जैगम का मोबाइल ज़मीन पर दे मारा और वहाँ से चलती बनी। जैगम को कुछ पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या, ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब इसने मुस्कुराहट रोकते हंसी को देखा तो सब समझ में आ गया। जलील, कमीने, खबीस, तुमने ऐसा क्यों किया? जैगम मुठ्ठियाँ भींच कर चिल्लाया। रंग में भंग डाला बस, और तो कुछ नहीं किया, हंसी ने बेनियारी से कहकर कंधे उचकाए। और जैगम इसके डायलॉग से जान गया कि इसने इस रोज़ वाला बदला लिया। हालांकि जैगम को तौसीफ वगैरह ने ऐसा करने से मना भी किया था। अब 8-8 आंसू रो रहा था। अब बस कर यार, ये मगरमच्छ के आंसू बंद कर दे, तुझे पता तो हंसी से पंगा लेना आसान नहीं। इसे जैगम का कंधा थपका। इतने में बाकी भी जमा होकर जिस जिसको जैगम की आप बीती का पता चला वो हंसी और शरारत के पुल बांधते चले गए। यार बेशक मैंने मजाक किया था, लेकिन इसे जोजो या नीला छोड़कर तो नहीं चली गई ना? इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? वो दहाई दे रहा था। हंसी शरीर हुआ। देखें देखें जी, सारी बात है प्यार की। मेरी फ्रेंड्स को मुझसे प्यार है, इसलिए मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाती। और रही बात तुम्हारी, तो मुझे तो यही लगता है कि तुम्हारी फ्रेंड को तुमसे प्यार नहीं है, इसलिए छोड़कर चली जाती, वरना और तो कोई वजह नहीं है। ऐसी की तैसी तेरे प्यार की, तूने मेरी सोनिया भगाई, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। जैगम बिलाकर इस पर छप्पड़ पड़ा। हंसी एकदम इसके शिकंजे से बचते हुए भाग निकला और यूं ही भागते हुए सीढ़ियों तक पहुंच गए थे। हंसी ने जरा मुड़कर अपने पीछे लपकते जैगम को देखा और नजर चूकी। अगली पल एक दहला देने वाली जोरदार चीख फिजा में गूंजी और वो सामने से आने वाले अंधाधुंध भागते लड़के से टकराकर सीढ़ियों से गिरती चली गई। और इस लड़की को इस पूरी तरह गिरते देखकर हंसी और जैगम खुद भी घबरा के वो दोनों लपक कर इसके पास पहुंचे। हंसी ने फौरन बाजू का सहारा देकर इसे सीधा किया और इसका चेहरा देखकर ठिठक गया। वो रायना थी, जोजो की फ्रेंड। इसके सर पर ज़्यादा गहरी चोट आई थी, इसलिए खून ज़्यादा बह रहा था। वली, तुम गाड़ी निकालो। हसन ने उजलत में सामने खड़े वलीद को काम सौंपा। तुम जोजो का पता करो, इसे भी साथ ले आओ, इसने जैगम को कहा। तो सिर्फ जल्दी से इस लड़की की सारी बिखरी चीज़ें इकट्ठी करो, गाड़ी में आ जाओ। इसने रायना को उठाकर गाड़ी में डाला। इमरजेंसी में लेकर अजीज़ भट्टी अस्पताल आ गए। इनके पीछे जोजो और बाकी स्टूडेंट्स भी आगे। गवर्नमेंट अस्पताल था, इसलिए शुबहत की बिना पर पूछकर शुरू होगी कि कहीं ये पुलिस केस ना हो। लिहाजा हसन ने अपने टीचर सर खटक को कॉल किया और इनकी गवाही और सिफारिश पर रायना को एडमिट कर दिया गया। आधे घंटे बाद थोड़ा रश कम हुआ तो डॉक्टर्स भी आ गए। इन्होंने चंद मेडिसिन लिख कर दिया जो स्टोर से लेकर आई थी, इसलिए हसन ये काम किसी को भी दिए बगैर खुद ही गाड़ी लेकर मेडिकल स्टोर चला गया। तकरीबन आधे घंटे बाद वापस आए तो रायना कहीं भी नहीं थी। कहाँ है वो? हंसी को परेशानी लग गई। इसके घर वाले आए थे, इसे यहाँ से डिस्चार्ज करवा के किसी और अस्पताल ले गए। गवर्नमेंट अस्पताल इनके मैार का नहीं था, वलीद ने संजीदगी से बताया। हालांकि वो भूल रहे हैं कि ऐसे इमरजेंसी केस प्राइवेट अस्पतालों में कम ही हैंडल करते हैं। हर कोई ऐसे केस को गवर्नमेंट अस्पताल भेजता है। एनीवे, इनकी अपनी मर्जी, जो चीज़ चाहे करें। हमारा काम था फ़र्ज़ पूरा करना, सो हमने कर दिया। अब्बास ने लापरवाही से कंधे झटके, लेकिन हंसी हाथ में पकड़ी हुई दवाइयों का शॉप पर देख रहा था जब गैर ज़रूरी हो चुका था। अपने सिर च मार। वो तकरीबन 5 रोज़ बाद यूनिवर्सिटी आई तो इससे पहली नज़र हंसी की पड़ी। वो बेख्तियारी से देखकर अपनी जगह से खड़ा होकर सारी बातें तर्क करके इसके करीब चला। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वो अपनी वजह से किसी को मिलने वाली इतनी तकलीफ पर शर्मिंदा था। रायना से अपने सामने देखकर भुना गई। तुम? वो चपा कर बोली। आई एम सॉरी मिस रायना, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। हम लोग आपकी आदत के लिए अस्पताल आना चाहते थे, लेकिन फिर ये सोचकर रुके कि शायद आपके घर वालों को बुरा लगे। एनीवे, आप ये बताएं, आप तबीयत कैसी है? हसीन इंतहाई शाइस्तगी से बोलता बहुत ही महज़ब अंदाज में इसका हालचाल पूछ रहा था। कुछ दूर बैठे इसके दोस्त भी इसे रायना के पास खड़े देख रहे थे। मेरा रास्ता छोड़ो।
रायना का लहजा सख्त था। मैंने आपकी तबीयत पूछी है, रास्ता नहीं रोका। मेरी तबीयत से तुम्हें क्या मतलब? वो भी बिला की गुस्सीली और बदगुमान लड़की थी। आपकी तबीयत से मुझे ये मतलब है कि आपकी तबीयत मेरी वजह से ख़राब हुई है। बड़ा एहसास है आपको, वो फनकारी। जी बस अपना तो दिल ही ऐसा। वो संजीदगी से बात करते करते हुए अपनी शरारती फितरत से बाज नहीं, और लेकिन रायना फट पड़ी। शट अप, जस्ट शट अप। मैं अच्छी तरह जानती हूँ लड़कियों को फांसने के बहाने ये सब। पहले इनसे टकराते हो, फिर अयारत करते हो, फिर इनसे सॉरी बोलते हो, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि बात आगे बढ़ाने का मौका मिल सके। अगर यही कुछ करना होता तो सीधे सीधे लड़कियों को ऑफर कर दिया करो। इनडायरेक्ट बात करने का क्या फ़ायदा? जो कुछ चाहते हो डायरेक्ट बोल दिया करो। वो इंतहाई तलखी और अहानत में इस लहजे में बोल रही थी। मिस रायना हैदर, मुझे कोई शौक नहीं है आपको फांसने का, और ना ही आपसे रवाबत बढ़ाने का। मेरे सामने आप जैसी हज़ारों कतार बांधे खड़ी होती हैं और मेरी एक नज़र के लिए भी तरसती हैं। एक आप ना हुई तो क्या होगा, मेरे चाहने वालों में कमी नहीं आएगी। लेकिन एक बात मैं यकीन से कह सकता हूँ कि अगर मैं वाकई आपको फांसने की कोशिश करता तो यकीनन फांस भी लेता। बस बात यह है कि मैंने कोशिश ही नहीं की, वरना आप तो। इसने रायना को हमेशा की तहकीर में इस नज़र और बातों का हिसाब पल में बराबर कर दिया। वो तो जैसे पागल उठी। जलील, कमीने, आवारा, लौफड़, तुम और कह भी क्या सकते हो? जैसे बदकिरदार खुद हो वैसे दूसरों को भी समझते हो। मैं तुमसे बात करना भी अपनी तौहीन समझती हूँ। मुझे इस रास्ते से जाना भी नागवार गुजरता है जिस रास्ते से तुम गुजर जाते हो। वो गिरी पड़ी लड़कियाँ और होंगी जो तुम्हारी बात और तुम्हारे जाल में आ जाती हैं। हज़ारों लड़कियों के साथ चक्कर चलाते हो, इनके जिस्म के साथ खेलते हो। तुम्हें घिन नहीं आती अपने आप से? वो चीख चीख कर बोली तो हंसी के दोस्तों के साथ साथ और भी स्टूडेंट्स जमा हो गए। हंसी का चेहरा सब गुस्सा जब्त करने की कोशिश में सुरख हो गया। देखिए मिस टाइना, आप इस तरह सबके सामने इंसल्ट करिए, आपको कम अज़ कम। तौसीफ़ एकदम आगे बढ़े। अपने दोस्त की इतनी हित को इंसल्ट इनमें से किसी को गवारा नहीं थी। तौसीफ़ रहने दो, बोलने दो इनको जो भी बोलना चाहती हैं। हंसी ने हाथ उठाकर तौसीफ़ को खामोश करा दिया। तुम्हारी कोई इज्जत होगी तो तुम्हें इंसल्ट का एहसास होगा ना। जिसकी कोई इज्जत ही नहीं, इसे बेइज्जती का भला क्या खबर? रायना का आखिरी बार बड़ा कारी था। हंसी ने एकदम झटके से सर उठाकर से देखा, आंखों में बर्फ उतर आई। इतनी सर्द नजरों से देखा कि रायना की रीढ़ की हड्डी जैसे कड़कड़ा कर रह गई। वो चंद कदमों का फासला कदमों से समेट कर रायना के बेहद करीब आ खड़ा हुआ। एक मचमे की सूरत खड़े स्टूडेंट छिटक के क्या करने वाला है। ऐसे एक गल थे कहांगी रायना बीबी, एवं ही पराई लड़ाई दे विच जाके औकात तो बाहर नहीं होईदा हुंदा हैगा। लड़कियों को रिजर्व बनाना चाहिए। सीधी साफ बात है, दो टोक बात है कि लड़कियों को इस तरह से नहीं करना चाहिए कि जाके तुसी एवं एवं किसी ने फड्डे ले जाओ। तैਨੂੰ एक बंदा नहीं पसंद, बस दैट्स इट, मुड़ जाओ, अपना अपना रास्ता बदल लो, गल खत्म। रायना हैदर, मैं औरत की बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन जो औरत इज्जत करना नहीं जानती वो इज्जत करवाने की हकदार भी नहीं है। तुमने जो करना था कर लिया, अब मेरा इंतज़ार करो कि मैं क्या करता हूँ। मैं कभी अपना बदला नहीं छोड़ता, इसलिए आज के बाद हमेशा याद रखना कि हसन अली का तुम्हारी तरफ काफ़ी हिसाब किताब निकलता है। मैंने जब चाहा ये हिसाब बराबर कर लूँगा, बस तुम वेट करो। अल्लाह हाफिज़। वो सरगोशी नुमा आवाज़ में बोलता रायना की बोलती बंद कर दे, और बाकी सब खड़े देखते रह गए। बहुत चंगा है तू, बहुत आवाज़ चढ़ के बोलती थी जी। वो जो करदा जो नहीं करदा ओदा फेल है, तू ओदी कबर दे विच नहीं ना जाना। मुबारक और रायना, अरीब को जॉब मिल गई। वो घर में दाखिल हुई तो मायरा से गुड न्यूज़ देने के लिए सबसे पहले से तैयार बैठी थी। सच्ची? रायना खुशी से उछल पड़ी। आज यूनिवर्सिटी में कोई फंक्शन था इसलिए वो लेट कर आई थी, और अरीब इसका इंतजार कर करके अपने बेडरूम में चला गया था। मुच्ची, मायरा ने चेक कर कहा, जॉब कहाँ मिली? इसे तजस्सुस हुआ। बैंक में एक इंतहाई अच्छी पोस्ट पर। मायरा का लहजा बताया था कि इस न्यूज़ पर सिर्फ मायरा नहीं, तमाम घर वाले भी खुश थे। वाह, मुबारक हो फिर तो। रायना ने भी खुशी का इजहार किया। अरीब भाई कहाँ है? इसने आगे पीछे देखते हुए पूछा। अपने बेडरूम में। मैं देखती इनको कहाँ छुप कर बैठ के, ना कोई ट्रीट ना कोई मिठाई। वो अपना बैग लाउंज में सोफे पर डाल के सीढ़ियाँ चढ़ गई। इन तीनों बहन भाइयों के बेडरूम ऊपर ही थे, अलबत्ता मामा पापा के बेडरूम नीचे थे। इसने अरीब भाई के बेडरूम के सामने खड़े होते दरवाजे पर दस्तक। तीनों ने चंद सेकंड के तौक़ुफ़ के बाद दरवाज़ा खोले थे कि रायना बुलंद आवाज़ से चेक की। मुबारक हो, मेरी ट्रीट कहाँ है? इतनी जल्दबाजी पर अरीब पहले तो हैरान हुआ, फिर एकदम हंस पड़ा और इसका हाथ पकड़ के इसे अंदर ले आया था। अंदर आओ, बैठो, आराम से बात करो, फिर ट्रीट का मुतालबा करो। अरीब ने इसे लाकर अपने बेड पर बिठा दिया। मैं सिर्फ मुतालबा ही नहीं करूँगी बल्कि मुतालबा मनवाऊँगी भी, इसने पुरजोर लहजे में कहा। अरे यार मनवाओ तो सही, कुछ जतन तो करो। अरीब इसे छेड़ा था। व्हाट? मैं अपने भाई से ट्रीट लेने के लिए जतन करूँ, यानी खुशामद करूँ आपकी? रायना एकदम चीख उठी और अरीब कहकर लगा कर हंसने लगा। ओके बाबा ना करो, लेकिन ये तो बता दो कैसी ट्रीट लोगी? अरीब ने हथियार डाल दी। कैसी ट्रीट? ये तो सोचना पड़ेगा। वो पुरसोच अंदाज में बोली, फिर कोई ख्याल आती आंखें चमक उठी। सिल्वर स्पून से लंच और अलीना सेंटर से शॉपिंग, बस इतनी सी ट्रीट लूँगी। इसने बड़ी आसानी से कहकर कंधे उच गए। क्या ये सब इतनी सी है? अलीना सेंटर से शॉपिंग, जहाँ चीज़ों के प्राइस 5,000 से शुरू होते हैं। उफ, मेरी जेब अभी इतनी भारी नहीं हुई। अरीब ने कानों को हाथ लगाया। ओके, हम अलीना सेंटर नहीं जाते, पेस चले जाते। रायना की लापरवाही नूस थी। यानी जंगल आ गए और पीछे खाई? अरीब ने सर थाम लिया। रायना अपनी मुस्कुराहट रोकने लगी। मान ले अरीब भाई, एक तो मानना ही पड़ेगा, वरना कोई तीसरा शॉपिंग मॉल निकल आएगा। मायरा मुस्कुराते हुए अंदर दाखिल हुई। इनकी गुफ्तगू सुन चुकी थी। हाँ यार, तुम ठीक ही कह रही हो। अरीब ने इस बात में सर हिलाया और रायना खिलखिलाकर हंसी थी। तो फिर कल लंच का प्रोग्राम पक्का? इसने तस्दीक चाहिए। पक्का, अरीब ने मान लिया। फिर दोनों बहन भाई हंस पड़े। इन तीनों बहन भाइयों में बहुत मोहब्बत थी। इसने 6 सेमेस्टर में पूरे डिपार्टमेंट में टॉप किया। खुशी इसके लिए, इसके घर वालों के लिए और इसके
دوستوں کے لیے کچھ کم نہیں تھی. اس بار ایگزامس کے دوران اس نے واقعی ٹاپ کرنے کا عزم کیا تو سچ مچ کر بھی لیا, اور وہ لوگ یہی خوشی سیلیبریٹ کر رہے تھے. اس کے دوستوں نے اسے ٹریٹ مانگی تو اتنی بڑی خوشی ملنے پر ان کو انکار نہیں کر سکا. اور جوجو اور انیلا وغیرہ نے بھی زور دیا. انیلا کو UFC میں اور جوجو کو کنارا پر ٹریٹ دے کر فارغ ہو چکا تھا. رہی آمنہ تو وہ تھی ہی درویشن, ہنسی سے ٹریٹ نہ بھی دیتا تو گزارا ہو ہی جاتا. اس نے کون سا لڑائی جھگڑا کرنا تھا یا پھر اسے خفا ہونا تھا. البتہ سب سے بڑی اور مہنگی اسامی اس کے دوست ابھی رہ گئے تھے جن کو بھگتنا بھی باقی تھا. روز روز کی یاد دہانی اور تانوں سے تنگ آ کر اس نے انہیں انوائٹ کر ہی لیا, اور اس وقت اپنی کمینگی کے عروج پر تھے. انہوں نے ہوٹل میں بھی ادھم مچا رکھا تھا. یار ایسی مجھے یہ بتا, تو اتنی لڑکیوں کے ساتھ بیزی رہ رہ کے تھکتا نہیں ہے؟ توصیف مانی کھیلی سے اس کے کندھے سے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا. حسن وہ بھی صنف نازک کا, تھکن اتارتا تھکاتا نہیں. یہ جواب عباس کی طرف سے آیا, جو خود بھی بہت خوبصورت تھا اور ابھی تک ایک دو جگہ پہ ماڈلنگ بھی کر چکا تھا. وہ کشمیری فیملی سے تھا اس لیے خوبصورتی سے ورثے میں ملی تھی. لیکن یار تم میں تو بہت اسٹیمنا, کبھی کسی کے ساتھ کبھی کسی کے ساتھ. اف, ایک بار جوجو کے ساتھ ڈیٹ پر جا رہے ہو, دوسری بار انیلا کے ساتھ, تیسری بار عروج کے ساتھ. کیسے ہینڈل کر لیتے ہو سب کو, وہ بھی ایک ہی دن میں؟ توصیف کا سوال اور حیرانی ہنوز اپنی جگہ قائم تھی. اور تم ان تمام فرینڈس کے ہوتے ہوئے ایگزامس میں ٹاپ بھی کر لیتے ہو. واو امیزنگ, میں بھی کچھ سیکرٹ, ہمیں بھی کچھ سیکرٹ بتاؤ. وہ باقی حیران ہو رہے تھے. دیکھیں جی, ساری بات ہے پیار کی. میرا مطلب ہے کہ ساری بات ہے محنت کی, لگن کی اور توجہ کی. میں ہمیشہ ہر کام محنت, لگن اور توجہ سے کرتا ہوں, اس لیے میرے ہر کام کا رزلٹ بھی اچھا ہی ہوتا ہے. واہ کیا بات ہے, لیکن ہمیں یہ تو بتا دو کہ لڑکیوں پہ کیا محنت کرتے ہو. زیگم بےتاب ہو رہا تھا. ہاسٹل میں میرے کمرے میں آنا, پھر فرصت سے بیٹھ کر بتاؤں گا. اس کا انداز بھی شرارتی تھا. ٹھیک ہے آ جاؤں گا, لڑکیوں کو پٹانے کا فارمولا لینے کے لیے تو میں کہیں بھی جا سکتا ہوں. زیگم آنکھ دبا کر بولا. تو پھر آج سے سینٹرل جیل چلے جاؤ, وہاں ایسے بہت سے ہوں گے جو لڑکیوں کو پٹانے کے چکر میں خود پٹ چکے ہوں گے. پٹ کر آئیں گے, تمہیں ان سے فارمولا مل جائیں گے. توصیف نے زیگم کو چھاڑ دیا. مجھے کسی اور کے نہیں, بس اپنے ہنسی شہزادے کے فارمولے چاہیے, ایک دم کامیاب. تم نے عروج نہیں دیکھی؟ قسم سے یار کیا چیز ہے, بالکل نیو, 0 میٹر, چمکتی دمکتی. زیگم نے ہنسی کی نئی دوست کی ایسی تعریف کی جیسے وہ لڑکی نہیں شو روم میں رکھی کوئی لیٹسٹ ماڈل کی گاڑی ہے. ویسے انہوں نے اپنیاں بہنا نہیں ہے اس طرح بیٹھے نا کمنٹ پاس کری جا رہے, لیکن میرا خیال منڈے یہی خوشی کرتے ہیں. تیری سیٹنگ کروا دوں عروج کے ساتھ؟ ہنسی نے ہاتھ طے کی قبر پر لات ماری. ہیں سچ؟ اللہ تجھے عرشا دے رنگ لائے, تجھے ساتھ ساتھ پتر دیوے, تجھے خوش رکھے. میں مر بھی گیا تو میری قبراں تینوں دعاواں دیں گی. زیگم خوشی سے بزرگ بنا دعائیں دے رہا تھا. یوں ہی چھیڑ چھاڑ کے دوران ہنسی کی نظر اس پر پڑی. دائیں طرف والی ٹیبل پر آئینہ حیدر بیٹھی ہوئی تھی, ساتھ ایک لڑکی اور ایک لڑکا بھی بیٹھے ہوئے تھے. لگتا تو آپس میں بہن بھائی تھے, کیونکہ نین کو کچھ اچھی خاصی شباہت محسوس ہو رہی تھی. رائنا حیدر کو دیکھ کر ہنسی کے چہرے کے تاثرات بدل گئے. اس کے چہرے پر تناؤ پھیل گیا, لب بھینچ لیے تھے. وہ جب جب رائنا کو دیکھتا اسے اپنی تصویر اور حد تک یاد آ جاتی. اسے یاد تھا کہ اس نے رائنا کا دیا ہوا قرض سود سمیت واپس بھی لوٹانا ہے. البتہ کب لوٹانا یہ بھی فیصلہ نہیں کیا تھا, کیونکہ وہ عام فلموں اور افسانوی ہیروز کی طرح ہیروئن سے انسلٹ کروانے سے, تھپڑ کھانے کے بعد ہیروئن کو اغوا کر کے کسی خفیہ جگہ پر نہیں رکھ سکتا تھا. اور نہ ہی وہ ہیروئن کی عزت پر ہاتھ ڈال سکتا تھا, اور نہ ہی اسے بدنام اور رسوا کر سکتا تھا, کیونکہ اسے خود یہ کام انتہائی چیپ لگتے تھے. وہ اگر کچھ کرنا چاہتا تھا تو بھی اپنے معیار کا, کچھ اس طریقے سے کہ رائنا حیدر اس پر لگائے جانے والے الزامات کے بدلے تھوڑا سبق سیکھ لیتی. وہ اسے صرف اتنا بتا دینا چاہتا تھا, وہ کریکٹر لیس ہے یا نہیں. ہنسی کیا دیکھ رہے ہو؟ ولید نے اسے متوجہ کیا. کچھ نہیں. رائنا حیدر کو دیکھ رہے تھے. ولید استفہامیہ دیکھنے لگا. رائنا وغیرہ وہاں سے اٹھ کر جا چکے تھے. ہاں, اس نے اس بات میں سر لیا. مجھے لگتا ہے وہ ہماری باتیں سن چکی ہیں. علی کو فکر ہوئی. سو واٹ, ہنسی نے سر جھٹکا. خیر چھوڑو اس قصے کو, اب ایسا کرو کہ ڈھاکا فش آرڈر کرو. علی نے بات ہی ختم کر دی. ہاں جلدی سے آرڈر کرو, علی کی توند خالی پڑی ہے, پہلے جو کچھ کھایا وہ کب کا ہضم ہو چکا. توصیف نے دوبارہ سے نان سیریس ٹریک اپنا لیا. ہنسی زارہ تھے, تھوڑی دیر پہلے والے غصے اور ضبط میں نہیں رہ سکا. اسے بھی دوستوں کے ساتھ شریک ہونا پڑا. بغیرتیاں نے بغیرت. زندگی کا شجر ہرے بھرے پتوں سے لدا پھندا تھا. زندگی کی وقت کی رنگین بہاریں اور زرد خزائیں آتی گئیں اور گزرتی گئیں. ماہ و سال کی تیز دھوپ ہرے بھرے پتوں کو جھلسا کر بے جان کرتی رہی, اور زندگی کے شجر سے ہر سال ایک پتا کم ہوتا اور وقت گزرتا رہا. 4 سال کیسے گزر کے پتہ نہ چلا. وہ جب یونیورسٹی آئی, ان کے پاس جوش تھا, اشتیاق تھا, تجسس تھا, کچھ دیکھنے کا, کچھ کرنے کا, کچھ پانے کا. بغیرتیاں کرندہ اشتیاق گزیں انہوں نے. اور جب 4 سال بعد یونیورسٹی سے نکلے, ان کے پاس ایک دوسرے سے دوستی تھی. 4 سال کی ہنسی مسکراتی شوخ یادیں تھی, اور ہاتھوں میں کامیابی کی ڈگریاں تھیں. یونیورسٹی آف گجرات کا ایک یادگار گروپ 6 لڑکوں پر مشتمل تھا, جو نہ تو اس یونیورسٹی کو بھول سکتے تھے, نہ ہی یونیورسٹی ان کو بھول سکتی تھی. انہوں نے صرف ہنسی مذاق اور شرارتوں میں نہیں, بلکہ تعلیمی میدان میں بھی ریکارڈ قائم کیے تھے. اکثر ٹیچرز ان کو حرفن مولا کہتے, کیونکہ شرارتوں سے تو ٹیچرز بھی محفوظ نہیں رہ سکے تھے. ایک دو ناپسندیدہ ٹیچرز پہ تو انہوں نے بین بھی لگوا دی تھا, کیونکہ جو ٹیچر ان کو پسند نہیں تھا, اسے لیکچر لینا اور پڑھنا بھی انہیں منظور نہیں تھا. کسی ٹیچر پر بین لگوا کے اسے ٹکر لینا بھی صرف انہیں کی ضرورت تھی, ورنہ کوئی اور ایسا ہرگز نہیں کر سکتا تھا. اور جب یونیورسٹی سے نکلے تو ان ناپسندیدہ ٹیچرز نے بھی ان کو خوب مس کیا, اور مس تو ایک دوسرے کو بھی کر رہے تھے, کیونکہ اب ان کے راستے بھی الگ الگ تھے اور منزلیں بھی. اور واقعی ایسا ہی ہوا, وہ لوگ ترقی اور کامیابی کی منازل طے کرتے کہیں سے کہیں پہنچ گئے. بس اتنا تھا کہ وہ لوگ دور دور رہ کر بھی قریب تھے, ایک دوسرے سے رابطے میں رہتے تھے.
हंसी यूनिवर्सिटी से फारिग होते हाई स्टडी के लिए इंग्लैंड चला गया, लेकिन वहाँ जाकर अपनी स्टडी और जॉब में बिजी रहने के बावजूद अपने दोस्तों को नहीं भूला। रोज़ाना फेसबुक पर इन सबसे बारी बारी गपशप होती रहती थी, इसलिए इनकी दोस्ती ताज़ा था, हशाश बशाश थी, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि वो खुद भी हशाश बशाश थे, एकदम फ्रेश और एक्टिव। पाकिस्तान आने का कोई इरादा भी है या नहीं? मामा सचमुच खफा हो रही थी। बिल्कुल इरादा भी और नियत भी, वो इत्मीनान से बोला। तो फिर कब आ रहे हो? बस सब कुछ समेटते हुए 2-3 माह लग जाएंगे। क्या 2-3 माह? वो हैरान हुआ। ट्राई टू अंडरस्टैंड मामा, एक जगह से हर चीज़ ख़त्म करके चल देना इतना आसान काम नहीं है, वो इन्हें समझा रहा था। लेकिन तुम्हें ये सारे काम 2-3 माह में नहीं बल्कि 1 माह में समेटना होंगे। इनका लहजा दो टोक और मजबूत है। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी आफत आ गई? बदतमीज आफत ही तुम्हारे भाई की शादी आ गई, नवंबर की 9 तारीख फिक्स हुई है। इन्होंने इसे सरजनिश की। क्या डेट फिक्स होगी? और आप मुझे अब बता रही हैं? इसे हैरत का शदीद झटका लगा। आज ही फिक्स हुई है पागल। ओह अच्छा, लेकिन आप लोगों ने मुझे मेरी होने वाली भाभी की तस्वीर नहीं दिखाई। मेरी जान, ये काम तुम्हारे चांद भाई का था। इसे चाहिए था कि वो तुम्हें अपनी होने वाली बीवी की तस्वीर दिखाता। मुझे भला कंप्यूटर सिस्टम का क्या पता? आसमा बेगम खफकी से बोली। मैं बात करूंगा इनसे, वो संजीदगी से कह रहा था। अब ये बात करने का क्या फ़ायदा? अब तुम अपनी भाभी को डायरेक्ट फेस टू फेस देख लेना। दिन ही भला कितने रह गए? हाँ, ये भी ठीक कहा आपने। वैसे इस वक्त दूल्हा साहब कहाँ हैं? इसके मूड में शरारत खुल गई थी। और सब नीचे ड्राइंग रूम में बैठे शादी के कार्ड्स का डिज़ाइन पसंद करें। माशाल्लाह, बड़े फुर्तीले साबित हो रहे हैं दूल्हा साहब। इसने अपने बड़े भाई का मजाक उड़ाया। मेरी जान, ऐसे कामों में हर कोई फुर्तीला हो ही जाता है। मुझे आज तुम्हारी शादी का किस्सा छेड़ने दो, तुम इससे भी ज़्यादा फुर्तीले हो जाओगे। शादी के मामले में तुम्हारे पापा ने भी बहुत फुर्तीलापन दिखाया था। आसमा बेगम ने बेटों को लपेट में लेते हुए जोर शौहर को भी बात में लपेट लिया, जिस पर हंसी एक जोरदार कहका लगा। कैंसर अच्छा किया था इन्होंने, वरना हमें इस दुनिया में आने में देर हो जाती। वो बाप का तरफदार बना। अब इसलिए तुम दोनों भाइयों की शादी का कह रही हूँ ताकि मेरे पोते पोतियों को आने में देर ना हो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ पोते पोतियों की आड़ में अब हमें जंजीर पहनाना चाहती है। तुम्हारे जैसे बदमाश को जंजीर ना पहनाऊँ तो और क्या करूँ? अरे नहीं नहीं मॉम, मैं ऐसी गलती मत कीजिएगा। अभी मैं जंजीर बगैर जंजीरों का आज़ाद दाना उड़ना चाहता हूँ। इसे सख्ती से मना किया। आखिर कब तक? ये तो मुझे भी नहीं पता कि कब तक। बहरहाल मैं भी ऐसे फिट हूँ। अभी से मैरिड लाइफ को जिम्मेदारियों में पढ़कर मैं अपनी लाइफ का सुनहरा दुरानी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। उफ, एक तो ये आजकल के लड़के लड़कियों को पता नहीं कि मैरिड लाइफ एक बोझ लगती है। इतने काहिल और कामचोर है कि जिम्मेदारी से भागते हैं। आसमा बेगम को कोफत हुई। अब पापा जैसी जल्दबाजी से तो हम बाज आए, इसने शरारत से कहकर माँ को छेड़ा। तो मैं भी अपनी पसंद की मिली नहीं ना, वरना तुम भी ये जल्दबाजी दिखाने से बाज ना आते। इनका जवाब भी सोलह ने सच था। हसी ने हंसते हुए तस्लीम भी कर लिया और फिर चंद और बातों के बाद फ़ोन बंद कर दिया। इसकी जॉब का टाइम हुआ था, वह निकलने की तैयारी करने लगा। चलो जाओ। इसने काफ़ी भाग दौड़ की थी इसकी अक्टूबर की लास्ट डेट्स में सीट कंफर्म हो जाए, लेकिन इतनी जल्दी ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। और चरतोड़ कोशिश के बाद अल्लाह अल्लाह करके इसकी 1 नवंबर के लिए सीट कंफर्म होगी। और इसके लिए ये भी गनीमत था कि शादी से 8 दिन पहले वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। और बाकी 1 नवंबर को इसने 4 साल बाद अपने घर में कदम रंजा फरमाया, तो अफजल साहब और आसमा बेगम अपने लाटे चहीते बेटे से मिलकर बेइंतहा खुश थे। 4 सालों में इसकी शख्सियत बेइंतहा निखर गई थी और पहले से ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम लगने लगा था। इसकी शानदार पर्सनैलिटी में एक मुतासर कुन तासर ठहराव था, इस पर नज़र नहीं ठहरी थी। ऐसे में अस्मा बेगम रवायती माओ की तरह इसकी नज़र उतारने से बाज नहीं है। इन्होंने फ़ौरन नज़र उतारने के साथ साथ सदका भी दिया। कभी ऐसे लाड ऐसी आवभगत हमारी भी कर लिया करें। चांद भाई माँ के अंदाज़ों देख कर रह न सके। इतने अरसे से तुम्हारी आवभगत ही तो करी, वो तो इतने सालों बाद नजर आए। आसमा बेगम ने बड़े बेटे को खफकी से घूरा। ओह, यानी घर से दूर रहने वाले की कदर होती है। ओके, आइंदा हम भी कहीं परदेश जाने का प्रोग्राम बना लेंगे। चांद भाई ने पुरसोच अंदाज से कहा। अब हनीमून का प्रोग्राम बनाइए भाई साहब, 8 दिन बाद शादी है। परदेश ही जाना तो पहले सोचते। हसी ने दिलचस्प मुस्कुराहट चेहरे पर सजाते हुए इनको छेड़ा। चलो अब तो सोच लिया ना, घर पर किसी न किसी को सही, कम अज़ कम बीवी को तो इंतज़ार हुआ करेगा ना। चांद भाई ने अफसुर्दगी से कहा। बस बस, ज़्यादा मजलूम बनने की कोशिश ना करो। अब तुम हमें ये बता रहे हो कि हमें तुम्हारा इंतज़ार ही नहीं होता। आसमा बेगम कड़े तेवरों से इसकी तरफ मतवजा हुई। वो सभी एकदम दिल खोल कर हंस पड़े। और आज तो हमेशा संजीदा और रिजर्व मूड में रहने वाले चांद भाई का मूड भी खासा खुशगवार और फ्रेश और शरारती हो रहा था। और इनका ऐसा मूड कभी कभार ही होता था, लेकिन जब होता था तो पूरे घर वाले खुश होते थे कि चलो कुछ देर के लिए सी अपनी संजीदगी से बाहर तो है। बस जो मुर्दा जो भी बोलता कफन पाड़ के बोलता वो साहब होना इधर चांद भाई था। भाभी कैसी है? हसी ने अपने बराबर बैठे चांद भाई की तरफ झुकते हुए राजतराना लहजे में पूछा। खूबसूरत है, वो भी सरगोशी नुमा आवाज़ में बोले। मैंने ये तो नहीं पूछा। हसी ने नर्वस करने में कसर नहीं छोड़ी, वो खिजल हो गए। लेकिन मैं तो वही बताऊंगा ना जो आजकल मुझे हर तरफ नज़र आ रहा है, बस इसकी खूबसूरती और वो खुद। इन्होंने भी बात बदलते हुए बात को संभाल लिया। कांटेक्ट होता है? नहीं यार, वो पसंद नहीं करती। मैं भाभी के लिए गिफ्ट्स लाया हूँ, संभाल के रखो, शादी के दिन दे देना। मैं भाभी को देखूंगा कब? देखने को तो तुम आज भी देख सकते हो, कल भी देख सकते हो, लेकिन यार तुम इतने लंबे सफ़र से थके हुए आए हो, रेस्ट करो, बाद में मिल लेना। चांद भाई ने इसे आराम करने का मशवरा दिया। तो फिर कब मिलूंगा? मैंने अपने होने वाली भाभी को देखकर इसे पास भी तो करना है। हंसी को भाभी देखने का इश्तियाक हो रहा था। तो तस्वीरें देख लो, मेरे बेडरूम में रखी। अब तस्वीरें देखने का क्या फ़ायदा? अब तो मैं इनको फेस टू फेस देखना चाहता हूँ। कितने मैंने शक पै रहा है भाभी की ओ ना निकल आवे। अरे यार तो फिर सब्र करो, 7 तारीख का इंतजार करो। 7 तारीख को निकाह और माइयों की रस्म है, एक साथ चलेंगे। चांद भाई ने इसका गंदा तबका। रुखसती से 2 दिन पहले निकाह? हंसी को हैरत हुई।
हाँ, इन लोगों में रस्म होती है, माइयों के वक्त निकाह होता है और फिर लड़की माइयों का पीला जोड़ा पहनती है और इसे तेल लगाया जाता है और माइयों का सारा साजो सामान लड़के के घर से भेजा जाता है। इन्होंने तफसील बताई। ओह, वो होंठ सुकेड़ कर रह गया। हंसी तुमसे जैगम मिलने आया। आसमा बेगम ने इतला दी। जैगी? वो एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया। इसने अपने किसी भी दोस्त को पाकिस्तान आने का नहीं बताया था। वो सबको सरप्राइज़ देना चाहता था, लेकिन जैगम न जाने कैसे से खोजता हुआ चला है। वो ड्राइंग रूम से निकल कर बाहर आया और घर की एक साइड पर बने वसी और इस मेहमान खाने में दाखिल हो गया। जैगी? इसने अंदर दाखिल होते हुए पुरजोश लहजे में पुकारा। जैगम भी इसे देखकर एकदम खड़ा हो गया। कमीने जलील बताकर क्यों नहीं आए? जैगम के गिले शिकवे और इसकी वजाहतें शुरू हो चुकी थी। चलो लगे रहो। 5 दिन कैसे गुजरे पता ही न चला। निकाह और माइयों का दिन भी आन पहुंचा। दुल्हन गुजरात की रहने वाली थी, इसलिए इन्हें बारात लेकर बाकी तमाम रस्में अदा करने के लिए भी गुजरात ही जाना था। लाहौर से गुजरात का 2.5-3 घंटे का सफ़र था और इसी तवील सफ़र के पेश नज़र इन लोगों ने लड़की वालों से कहा भी था कि सारी अरेंजमेंट लाहौर के किसी मैरिज हॉल में रख लेते, लेकिन वो लोग नहीं माने। फिर आसमा बेगम ने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया, लेकिन खुद इन लोगों ने वो भी वैसे गुजरात दिया। आने जाने में खास कुछ कम तो नहीं था, लेकिन हंसी इस काम के लिए भी पेश था। तुम पीछे हटो, मैं खुद ड्राइव करूंगा। इसने चांद भाई की गाड़ी ड्राइव करने के लिए तैयार ड्राइवर को पीछे हटा दिया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। ब्लैक कलर की चमकती दमकती BMW पर सुरख रिबन बंधा हुआ था। ये रिबन गाड़ी के इंजन और स्क्रीन और छत से पीछे तक बंधा हुआ था। आज हल्का फुल्का फंक्शन था, इसलिए गाड़ी की डेकोरेशन भी हल्की फुल्की करवाई थी, सिर्फ एक रिबन पर मुश्तमिल। लगता है तुम्हें गुजरात जाना बड़ा अच्छा लग रहा है? चांद भाई ने खुश खुश ड्राइविंग करते हंसी से पूछा। हाँ, मैं वाकई बहुत खुश हूँ। गुजरात शहर मेरे लिए हकीकतन बहुत अहम है। मैंने ज़िंदगी के 4 साल इस शहर में गुजारे और ये 4 साल मेरे लिए बहुत यादगार और कीमती है। इसने सच्चाई से जवाब दिया। क्या होता अगर तुम मुस्तकिल गुजरात आना लगा लेते? इन्होंने छेड़ा। क्या मतलब? मेरा मतलब अपने लिए कोई लड़की पसंद करके शादी कर लेते। हा हा हा। क्या खूब कही आपने भी। यानी मैं जहाँ रहूँगा वहीं शादी कर लूँगा। 4 साल तो मैं इंग्लैंड में भी गुजार कर रहा हूँ, क्या वहाँ भी किसी को पसंद करके शादी कर लेता? इसने इनको लाजवाब कर दिया। बहरहाल अभी तो आपका गुजरात आना जाना लगा हुआ ना, हमारी यादें भी ताज़ा होती रहेंगी। इन दोनों भाइयों का सफ़र हंसी मजाक और फुल वॉल्यूम की म्यूज़िक में गुजरा। आप मुझे गाइड करते ना किस तरह जाना है? इसने गुजरात के हदूद में दाखिल होते कहा। गाड़ी सर्विस मोड़ से रहमान शहीद रोड पर डालो और फिर मॉडल टाउन की तरफ टर्न ले लेना। चांद भाई ने रास्ता समझा। मॉडल टाउन? हंसी को मॉडल टाउन के तमाम रास्तों का पहले से इलम था, इसलिए अब गाइडेंस की कोई ज़रूरत नहीं थी। हेलो, वो भी मॉडल टाउन ही रहती। हाँ, इन्होंने इस बात में सर हिलाया। हंसी का जहन पिछले 10 मिनट से मुसलसल उलझा हुआ था, हर तरफ बड़े गौर से देख रहा था, खोज रहा था, क्योंकि इसकी याददाश्त की मुट्ठी से एक मंजर निकलकर सामने आया था। इस मंजर में अपनी फ्रेंड जोजो को मॉडल टाउन के एक बंगले के सामने ड्रॉप कर रहा था। और आज भी बंगला वही था। हैं? मॉडल टाउन भी वही था, ड्राइविंग सीट पर भी वही था, लेकिन बाएं तरफ फ्रंट सीट का मंजर बदला हुआ था। वहाँ जोजो के बजाय चांद भाई विराजमान थे और इसके साथ गेट का मंजर भी कुछ और ही कह रहा था। इस रोज़ इसकी सबसे बड़ी हरीफ रायना हैदर जोजो को रिसीव करने के लिए खड़ी थी। आज इसी गेट पर काफ़ी ज़्यादा लड़कियां नक्सक से तैयार खुशबू बखेरती फूलों की प्लेटें ली इनके इस्तकबाल के लिए खड़ी थी। हो सकता है रायना वगैरह ने बंगला बेच दिया, हो सकता है वो लोग शिफ्ट हो गए, या फिर हो सकता है कि मुझे गलत फहमी हुई हो। इसने खुद ही अंदाजे लगाने शुरू कर दिए। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि चांद भाई की शादी रायना के साथ ही हो रही हो। इसने एक और कयास आई कि फिर खुद ही सर खफकी से सर झटक दिया। नहीं नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? तो लान दिया पोछला अंधे को लो। इसने अपने जहन की तदलील छुटला दी। हो भी सकता है, जहन फिर भी बाज ना आया। लेकिन भाभी का नाम तो, इसने नाम सोचने की कोशिश की, लेकिन इसके हादसे में अपनी होने वाली भाभी का नाम कहीं भी नहीं था। तो क्या मुझे अपनी भाभी के नाम का भी नहीं पता? वो गाड़ी से उतरा तो इन्हीं सोचों में उलझा हुआ था। चांद भाई से पूछ लूँ? जहन ने उकसाया। नहीं, इस वक्त मैं इनसे नाम पूछूं जब अपने ससुरालियों में घिरे में? इसने नफ़ी में सर लिया। हंसी, क्या बात है, इतने सुस्त क्यों पड़ गए? आगे बढ़ो। आसमा बेगम ने इसे खफकी से देखा, चांद भाई के साथ खड़ा किया। वो दोनों भाई इकट्ठे अंदर दाखिल हुए। इन पे फूलों की बरसात शुरू होगी। इनको वेलकम करने के लिए बाकायदा बैंड बुलवाया गया। फूलों की छाँव और बैंड की सलामी वो लोग रेड कारपेट पर चलते बड़े से वसी और ईज लॉन में बने स्टेज की तरफ आ गए। चांद भाई के तमाम ससुराली बारी बारी इन सबसे मिलने के लिए आने लगे। हंसी बारी बारी सबको चेहरे बगौर देख रहा था। शायद कुछ जाना पहचाना चेहरा नजर आ जाए, और फिर एक चेहरे पर आकर वो ठिठक गया। वो चेहरा अरीब भाई का था। हेलो, हाय, मैं तो ही लग रही, ये मेरा बड़ा बेटा अरीब है और ये इसकी बीवी है एमन। शाइस्ता बेगम ने हंसी से तारुफ करवाया। वो जानती थी कि चांद का छोटा भाई चंद दिन पहले इंग्लैंड से आया, इसलिए सबसे अनजान है। अस्सलाम वालेकुम। इसने उठकर इनसे मुसाफा किया। आपकी बड़ी तारीफ सुनी थी चांद साहब, जब भी बात करते हैं इनकी बात में आपका जिक्र ज़रूर होता है। अरीब ने मुस्कुरा कर कहा, जिस पर हंसी भी मुस्कुरा उठा, और एक नज़र चांद भाई को देखा जो स्टेज के सोफे पर काफ़ी शहाना अंदाज में विराजमान थे। देखें जी, सारी बात है प्यार की। वो मुझसे प्यार करते हैं तो मेरा जिक्र ही करते हैं, वरना मुझ में ऐसी कोई खूबी नहीं। इसने इनकसारी से कहा। अब ऐसी बात भी नहीं है, आपकी खूबियाँ तो हम आपके घर वालों से सुनते रहते हैं, काफ़ी ज़हीन है आप। अरीब ने इसे तौसीफ़ी नज़र से देखा। ये भी मेरे घर वालों की और आपकी नवाजिश है कि आप लोग मुझे टैलेंटेड और ज़हीन समझते हैं। वो काफ़ी शाइस्तगी से बात कर रहा था। बेटा, आप लोगों की गुफ्तगू तो मेरा ख्याल है ज़्यादा देर तक चलेगी, अभी हमें निकाह की रस्म तो अदा कर लेने दीजिए। आसमा बेगम और शाइस्ता बेगम ने अपने बेटे को स्टेज से हटने का कहा और वाकई स्टेज से उतर गए। थोड़ी देर बाद निकाह की रस्म अदा हुई। मुबारक सलामत का शोर उठा था और सबका मुंह मीठा कराया जाने लगा। हंसी अरीब को देख देख कर अंदर ही अंदर उलझ रहा था। इसने इस आदमी को एक बार बहना के साथ सिल्वर सेवन रेस्टोरेंट में देखा था और वो
लोग यकीनन बहन भाई थे, लेकिन अगर वो बहन भाई थे तो फिर इस वक्त रायना कहाँ थी? और यही तो जासूसी से आसमा बेगम चांद भाई के पास ले गया। मैं भाभी से मिलना चाहता हूँ, थोड़ी देर बाद मिलने ना, इसे तेल लगने वाला माइयों का। मैं कुछ नहीं जानता, पहले आपने मुझे कुछ नहीं बताया, ना भाभी का नाम, ना भाभी की तस्वीर, ना इनकी फैमिली के मतलब कुछ बताया। मैं अभी इनसे मिलना चाहता हूँ बस। इसका दो टोक और हर धर्म लहजा ओत कर आया था। आसमा बेगम और चांद भाई दोनों ठिठक गए। इसकी खपकी इसके चेहरे से आया हो रही थी। वो दोनों माँ बेटा हंस दिए। सुनिए शाइस्ता बहन, आसमा बेगम ने समधन को आवाज़ दी। जी कहिए। वो फ़ौरन करीब चली आई। ये हसन अपनी भाभी से मिलना चाहता है, इन्होंने मुस्कुरा कर कहा। हाँ क्यों नहीं, आओ बेटा मेरे साथ आओ। इन्होंने फ़ौरन इसे चलने का कहा और वो सर हिलाकर सादतमंदी से इनके साथ चल दिया और इसे साथ लेकर ऊपर बेडरूम में आ गई, जहाँ माइयों की दुल्हन तैयार हो रही थी। दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर झांका दुल्हन को दुपट्टा उड़ाया जा रहा था। ब्रिटिश ने इसके दुपट्टे को पिने लगा लगा कर सेट कर दी। हम अंदर आ सकते हैं? शाइस्ता बेगम ने मुस्कुरा कर पूछा। मॉम आइए ना। वो रह न सकी। ब्रिटिश ने इसकी जल्दबाजी पर हंस पड़ी। मैं कह रही हूँ तुम्हारा एक बड़ा प्यारा सा रिश्ता भी मेरे साथ है, तुम्हारा एक लौता लाडला देवर। इन्होंने अपने पीछे हंसी को भी अंदर आने का कहा। हंसी अंदर दाखिल होते सामने बैठी अपनी भाभी को देखते रह गए। इसके अंदर पनने वाली अजीब सी बेचैनी को करार आ गए। वहम बस से संभल गए। बेटा ये तुम्हारी भाभी मायरा, और मायरा ये तुम्हारा छोटा देवर है हसन अली। इन्होंने तारुफ करवा दिया। ओह हो, शुक्र है मायरा निकली, मैं तो कैसी हो। अस्सलाम वालेकुम। हसन ने सलाम करते हुए ज़रा सा सर खम किया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए ना। मायरा बेख्तियार खड़ी होगी। अरे नहीं नहीं भाभी आप बैठिए, आप खड़ी क्यों होगी? इसने एहतरामनी से बैठने को कहा। तुम दोनों बैठो, मैं नीचे मेहमानों को देख लूँ। शाइस्ता बेगम जाने के लिए पलटी, लेकिन बाहर निकलते रही एकदम किसी से टकरा गई। उफ मॉम, वो एकदम अपनी नाक दबाते हुए कराही। तुम अब आ रही हो? शाइस्ता बेगम भी संभलते हुए इसकी तरफ मतवज्जा हुई। सॉरी मॉम, मैं लेट होगी, पार्लर में इतना रश था, जल्दी जल्दी करते भी देर होगी। मैंने ब्यूटिशियन से कहा भी था कि मुझे जल्दी फारिग करे, मैंने आप ही के ससुरालियों को वेलकम करना। चांद भाई की एक ही तो साली है, वो भी इस्तकबाल में शामिल ना हुई तो वो ना जाने क्या समझेंगे। रायना ने वजाहत देनी शुरू कर दी। ओके ओके, ये तफसील बाद में सुनाना, पहले सबके साथ मिलकर मायरा को लेकर नीचे आओ। ओके आ रही हूँ। इसने फ़ौरन हामी भरी और पीछे हटकर इनको रास्ता दिया, लेकिन जैसे वो अंदर दाखिल हुई, इस घर की दीवारें इसके अंदर नजरों में चकरा गई। मायरा जिस शख्स के साथ बैठी बातें करती वो शख्स रायना को भूला हुआ तो नहीं था। जब जब यूनिवर्सिटी की बात और किससे याद आते, जब जब जो जो याद आती वो भी तो साथ ही याद आता था। और इन कभी कभार की यादों में इसका चेहरा भूलने नहीं दिया था कि वो इतने सालों बाद देखते हुए इसे पहचान ना पाते। बेशक वो पहले से ज़्यादा सेहतमंद हो गया था, इसकी सफ़ेद रंगत और भी निखर गई थी। जीन्स शर्ट की बजाय ब्लैक टू पीस में मलबूस था। हेयर स्टाइल बदल गया था, गुफ्तगू में ठहराव आ गए थे, लेकिन इसके लिए तो आज भी वही हंसी था, फ्लर्टी और करेक्टरलेस, जिसकी रायना हैदर ने यूनिवर्सिटी के बीचों बीच इंसल्ट की थी। और इसके रिएक्शन के लिए वो इतना अरसा इतने दिन मुंतजिर रही थी कि अब कैसा वार करता है। मगर इसने वैसा कुछ भी नहीं किया, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी पीरियड हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। रायना ठहर क्यों गई? आओ इनसे मिलो, ये तुम्हारे चांद भाई के छोटे भाई हैं। मायरा ने तारुफ करवाते करवाते रायना की और भी कमर तोड़ के रख दी, और रायना की ऐसी हालत को मुंह से सलाम का लफ्ज़ भी न निकाल सकी। और हसन, ये मेरी छोटी बहन है रायना। मायरा भी दुल्हन होने के बावजूद चुप करके बैठा, मुनासिब न समझा, वो दोनों का तारुफ करवाया। अस्सलाम वालेकुम। हंसी ने सर उठाकर इसे देखा और इंतहाई नॉर्मल से अंदाज में सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, रायना ने चौंक कर जवाब दिया। अच्छा भाभी, मैं भी नीचे चलता हूँ, आप आराम से आ जाइएगा, भाई वेट करें। वो रायना को सरसरी से देखकर मायरा से ज़्यादा लेता बाहर निकल गया। वो मुझे देखकर ना ठिठका ना चौंका, लगता है इसने मुझे पहचाना नहीं। वैसे अगर देखा जाए तो मेरे लिए अच्छा ही है कि मुझे ना ही पहचाने। रायना दिल ही दिल में अंदाज़ा लगाती कि आस लड़ाती मायरा को लेकर नीचे आ गई। पुत्रो तेन बहुत पहले तो जान चुकी है। नीचे तमाम लड़कियां इंतजार में बैठी थी, दुल्हन की आधी अलर्ट होगी। फौरन कैमरामैन को बुला लिया गया। दुपट्टे की छाँव में रायना और इसकी कज़न मायरा को लेकर स्टेज तक आई और स्टेज पर चांद भाई के बराबरी से बिठाकर बैठा देखकर रायना के चेहरे की खुशी और ताजगी एकदम फिर से मानित पड़ गई। फिर दोनों दुल्हा और दुल्हन की रस्में शुरू हो गई। तो रस्मों के दौरान रायना को लगा जैसे इसे कोई देख रहा है, लेकिन वो जहाँ नजर दौड़ाती वो हर कोई अपनी धुन में नजर आता। इसे देखती वो भी दुल्हा दुल्हन की तरफ मतवजा दिखाई देता। अरे बेटी, तेरे हवास क्यों उड़े हुए? इधर आ, तुझे भी शगुन का तेल लगा दूं। रायना के रिश्ते की नानी थी, सबसे पहले इन्होंने मायरा को तेल लगा और वही तेल से नुचड़ता हाथ इन्होंने रायना के बालों पर फेर के इसे भी शगुन का तेल लगा दिया। बचाव भी न कर सकी। हाय बेचारी, एड्डा तैयार श्यार होकर ते शगन का तेल जड़ा लग गया ना। दुल्हन का झूठा तेल या मेहंदी जिसको भी लगता है, इसकी भी जल्दी शादी हो जाती है। अल्लाह तेरे भी नेक नसीब करे। वो दुआएं देती वहाँ से हट गई। रिश्ते दी नानी जड़ी है ना, नानी लड़ गई उन। रायना से पटा के रह बता करीब खड़ी इसकी कज़न हंस पड़ी। काश नानी ऐसी दुआ हमें भी दे जाती। सना ने आ भरी। फिर क्या होता? मेरीन ने पूछा। फिर मैं वो जो सामने बैठे दुल्हा के भाई से शादी कर लेती। कसम से कमाल पर्सनैलिटी है इसकी, मुसलसल दिल धड़काया जा रहा है। सना ने दिल पर हाथ रखा। रायना ने लड़कियों को देखा जो हर ज़ाहिरी शख्सियत पर रीझ जाती थी, हमेशा इंसान का ज़ाहिर देखती थी। रायना इधर आओ बेटा, बहन को तेल लगाओ। शाइस्ता बेगम ने आवाज़ दी और मजबूरन इसे सबकी नज़रों का मरकज़ बनते हुए स्टेज पर आना पड़ा। वो पीले सबस कम्बिनेशन के चुनरी के सूट में बहुत प्यारी लग रही थी। लॉन्ग शर्ट के साथ इसने चूड़ीदार पजामा और डबल शेड का खुस्ता पहन रखा था। कमीज़ हाफ स्लीव्स थी और दोनों कलाइयाँ जर्द और सबस चूड़ियों से भरी हुई थी। हर सिंगार इस पर जच रहा था। वो पहली बार इस कदर दिल लगाकर तैयार हुई थी, क्योंकि पिछली बार जब अरीफ भाई की शादी में बेहद सिंपल से अंदाज में तैयार हुई, मॉम के साथ सभी ने क्लास ली के इतना सिंपल रहने की जरूरत क्या थी? भाई की शादी बन सवर कर खुशी मनाओ। इसलिए इसने वो कसर आज निकाली थी। सभी से सताइशी नज़रों से देख रहे थे, लेकिन इसका मूड हारत हो चुका था। वो सारी महफिल में दूर दूर ही रही थी। चलो
ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ तू के अपने भैन दी ब्याह दे दूर दूर रह रही बीबी। ये क्या कह रहे हो तुम? वो लोग दम्बा खुद रह गए। मैंने जो कहा है वो आप सुन चुके हैं। इसका लहजा अटल था। तुम पागल हो गए हो क्या? यही समझ लें वो बेनियाज था। ऐसा कैसे हो सकता है? आसमा बेगम शौक में बैठी थी। जैसे मैंने बताया, जो तुमने बताया वो आसान नहीं है। अगर आसान नहीं तो इतना मुश्किल भी नहीं है। आप लोग चाहें तो सब हो सकता है। हमारे चाहने से भला क्या होता है? वो झंझला के। सब कुछ आपके चाहने से तो होता है। वो माँ को दूबदू जवाब दे रहा था। की है, लेकिन बेटा ये बात इस तरह कहना हरगिज़ मुनासिब नहीं। तुम नहीं जानते इन लोगों पे क्या गुजरेगी, वो क्या सोचेंगे, क्या क्या बातें, क्या क्या सोचें इनके जहन में आएंगी। इनके दिल हमारी तरफ से हमेशा के लिए बदगुमान और मैले हो जाएंगे। इन्होंने हर तरह से समझाने की कोशिश की। कुछ भी नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो? वो निढाल से लहजे में बोली। रीज़न मैं बता चुका हूँ। अगर आप लोग ऐसा कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं कल की फ़्लाइट से वापस इंग्लैंड चला जाता हूँ हमेशा हमेशा के लिए। वो अपनी बात कहकर इन सब पर तायराना सी नज़र डालता वहाँ से निकल कर अपने बेडरूम में चला गया। फिर थोड़ी देर बाद इसके जहन में कुछ और मोबाइल उठाकर जैगम का नंबर डायल करने लगा। जैगम आजकल इस्लामाबाद में होता था। जॉब की वजह से मायूं की रस्म में नहीं आ सका, अलबत्ता शादी में आने का पक्का वादा था। ये क्या कह रही हैं आप? रायना दब्बा खुद रहेगी। हाँ बेटा, तुम्हारी बहन का सुहाग तुम्हारे हाथ में है। अगर इनकार करोगी तो मायरा एक बार फिर बिखर कर रह जाएगी। शाइस्ता बेगम ने इसके सामने तस्वीर के दोनों रुख एक साथ रख दिए। मम्मा अभी बिखर कर रह जाएंगी? आपको ये ख्याल बार बार आ रहा है? और मैं, मेरे बारे में सोचा आपने? क्या मैं इस बदकिरदार इंसान के साथ रह पाऊंगी? वो दबे दबे लहजे में चीख उठी। बेटा इंसान हमेशा एक सा नहीं रहता। मुझे तो वो अच्छा लगा। इन्होंने कमज़ोर सी दलील दी। वो अच्छा होता तो आज अपने भाई की शादी से एक दिन पहले एक करतूत ना दिखाता। इसकी इस हरकत से जाहिर होता कि वो हरगिज़ नहीं बदला। वो आज भी वही हंसी है जो आज से 4 साल पहले था। वो मजबूत लहजे में बोलते हुए फनकारी। वो तुमसे मोहब्बत करता है बेटा। इसने मुझे फ़ोन पर सब कुछ पता है। शाइस्ता बेगम की बात पर चकरा गई। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि वो तो मुझसे। रायना बदला कहते कहते चुप होगी। इसे पता था कि अगर इसने वो किस्सा सुनाया तो भी गलती से ठहराया जाएगा। मैं जानती हूँ बेटा, तुम दोनों के दरमियान दूर दूरी से ही सही, लेकिन मोहब्बत पसंदीदगी का रिश्ता था जो तुम्हारी शक की बिना पर जुड़ने से पहले टूट कर रह गया। लेकिन हसन बहुत अच्छा बच्चा है, इस रिश्ते को दोबारा जोड़ना चाहता है। देखो रायना, बदगुमानी छोड़ दो। वो इसे समझा रही थी और रायना हक्का बक्का इनकी सूरत देख रही थी। हसी ने सच्चा झूठा किस्सा सुनाकर इनको तकरीबन कायल कर ही लिया था, मगर वो कुछ भी सुनने और मानने को तैयार नहीं थी। मेरी तरफ से इनकार है, इसने कहकर दरवाज़ा बंद कर लिया। तलाक? मायरा रिसीवर की दूसरी तरफ से तलाक का लफ्ज़ सुनते ही लहराकर ज़मीन पर आई थी। मायरा, अरीब भाई, एमन भाभी, शाइस्ता बेगम और हैदर साहब भागते हुए। मायरा की बेहोशी से सुबह ही सुबह घर में भगदड़ मच की। पूरी रात इन लोगों ने जागते हुए आंखों में गुजारी और अब ये मुसीबत लग। आज 8 तारीख थी, कल 9 नवंबर की शादी की तकरीब थी, लेकिन ये तकरीब भी खतरे में नजर आ रही थी। हैदर साहब के कंधे झुके हुए थे। शाइस्ता बेगम ने ढाल सी फेर रही थी। पहले उन्होंने बचपन में मायरा की एंगेजमेंट अपनी बहन के बेटे के साथ कर दी। वो खुद इंग्लैंड में और इनकी बहन कनाडा में रहाइश पजीर थी। मायरा और आतिफ की काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों फ़ोन पर घंटों बातें करते, रोज़ाना गपशप होती। लेकिन फिर न जाने कब और कैसे आतिफ ने बदलना शुरू कर दिया, इसने पता चला जब वो एक अंग्रेज़ लड़की जानी के बच्चे का बाप बन गया। और वो अंग्रेज़ लड़की आजकल इस पर शादी के लिए जोर डाल रही थी। इसने शायद केस भी कर रखा था और ये सदमा मायरा के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हुआ। इसका नर्वस ब्रेक डाउन हुआ। वो आतिफ से बहुत अटैच हो चुकी थी और इस मामले में काफ़ी हसास भी थी। यही वजह थी कि इसे संभलने में 4-5 साल लग गए। फिर 2-3 प्रपोजल आए जिनको वो ठुकराती रही, लेकिन लाहौर एक जानने वालों की शादी में जाना हुआ तो चांद और इसकी फैमिली से मुलाकात हुई। मायरा इन लोगों को बहुत पसंद आई। तीसरे रोज़ वो लोग प्रपोजल लेकर आ गए। मायरा चांद से दूबरू मिल चुकी थी। इसकी रिजर्व सी शख्सियत बहुत मुतासिर अच्छी लगी। सो इस रिश्ते के लिए रजामंदी देती, लेकिन मंगनी के बाद इसने चांद से कोई रब्ता नहीं रखा और फिर से ख्वाब नहीं देखना चाहती थी। इसे वहम सताते थे और आज इसके वहम सच साबित हो रहे थे। इसने इत्तेफाकन फ़ोन कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ चांदी था। वो रायना के इनकार की रद्द-ए-अमल में तलाक की बात कर रहे थे कि अगर रायना कल तक नहीं मानती तो वो तलाक के पेपर्स पर साइन कर देंगे। जिस घर में इसके भाई के लिए अहमियत नहीं, इस घर में वो भी कदम नहीं रख सकते। और मायरा की अधूरी बात सुनकर ही बेहोश होगी। इसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेकर इसकी बेहोशी और तलाक का सुनकर रायना भी कमरे से बाहर निकल आई थी। कदम थके थके से थे। बड़े लानती टब्बर निकले। अन टाइम ते की किता उस लानत बगैर इंसान दी बरा तो। कसरे नूर मैरिज हॉल में जहाँ एक दूल्हा दुल्हन के बैठने का इंतजाम किया गया था, वहाँ अब 2 दूल्हा दुल्हन एडजस्ट किए गए। जो भी मेहमान आए थे, एक की बजाय 2 जोड़ियाँ देखकर हैरान हो रहे थे। दोनों दूल्हा दोनों खुश और फ्रेश नजर आए थे। इनकी खुशी और ताजगी दूर से महसूस हो रही थी, जबकि दोनों दुल्हनें बेहद उदास और गुमसुम सी बैठी थी। वो दोनों भाई ब्लैक 3 पीस सूट में मलबूस इंतहाई शानदार लग रहे थे। अलबत्ता दोनों दुल्हन ने शॉकिंग पिंक कलर के लहंगे पहन रखे थे। आसमा बेगम ने मायरा का लहंगा अपनी पसंद से तैयार करवाया था। जब रायना के मान जाने का पता चला तो इन्होंने इसी बुटीक से बड़ी मुश्किल से वैसे ही लहंगा डिमांड किया था। लहंगे का मटीरियल पहले से तैयार था, शायद इसलिए बुटीक वालों ने एक रात के अंदर अंदर वो लहंगा तैयार कर दिया और आज सुबह वो लहंगा आसमा बेगम के घर पहुंचा गए थे। अलबत्ता ये बात और थी कि इन्होंने अर्जेंट तैयार करवाए जाने वाले लहंगे की कीमत डबल ली थी। और ऐसे ही हाल जेवर के लिए भी हुआ था। मैचिंग जेवर भी मुश्किल से दस्तियाब हुआ। जल्दी जल्दी में इन्होंने 4-5 रेडीमेड सूट भी खरीद लिए। बाकी की शॉपिंग शादी के बाद टाल दी कि रायना खुद साथ आकर खरीद लेगी। ताड़ी कबर सामान खरीदे रायना आके। मायरा का सब कुछ तो पहले तैयार था, बस रायना के लिए सब कुछ अभी रह गया था। हालांकि रायना को इन चीज़ों से कोई सरोकार नहीं था। वो तो बुत बनी बैठी थी, इसे तो कर्ज के साथ सूद की तरह दिया जा रहा था।
جس کا اپنا کوئی وجود نہیں، اپنی کوئی اہمیت نہیں، کسی نے اسے مانگا اور گھر والوں نے بے جان شے کی طرح اٹھا کر دے دیا، جیسے اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ اور یہی دکھی سے اداسی اور چپ کے حوالے کر گیا اس ماحول میں جسے باندھ کر بٹھائی گئی تھی۔ فرار کے تمام راستے مسدود ہو چکے تھے، بھاگنا ممکن نہیں تھا، اور اس کی اسی بے بسی پر یوں لگ رہا تھا جیسے سبھی دیکھنے سننے والے اس کا مذاق اڑا رہے تھے۔ اس مذاق کا احساس اسے تب ہوا جب ہنسی کے تمام دوست ملنے کے لیے اسٹیج پر آئے تھے۔ السلام علیکم بھابھی۔ توصیف اور عباس نے ذرا سا جھکتے ہوئے سلام کیا۔ رائنا نے چونک کر نظر اٹھائی، اپنی بھابھی کو دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، مسکرا رہے تھے، لیکن رائنا کو ان کی ہنسی اور مسکراہٹ اپنی ذات پر تازیانہ لگی، وہ روح تک جل کے رہ گئی۔ مبارک ہو جناب، ہنسی کا دوست وجاہت بھی چلا ہے۔ ان دونوں نے اسکول پیریڈ ایک ساتھ گزارا تھا، پھر وجاہت فرانس سے لگا تو ملنا جلنا ختم ہو کر رابطہ صرف فون اور نیٹ تک محدود ہو رہ گیا، اور آج کل وہ پاکستان آیا ہوا تھا۔ بھابھی، یہ گفٹ آپ کے لیے۔ وجاہت نے گفٹ اس کی طرف بڑھایا، رائنا گفٹ تھامنے کے لیے ہاتھ آگے نہیں بڑھا سکی۔ تھینک یو یار، بیٹھو نا تم لوگ۔ حسن نے اس گفٹ تھام کر ٹیبل پر رکھ دیا، اور یہ ہماری طرف سے۔ زینگم، علی، ولید، عباس اور توصیف نے بھی باری باری تحائف دیے تھے۔ ان کا گروپ فارغ ہو کر اسٹیج سے اترا تو خاور زاہد اور غلام مصطفیٰ بھی آ گئے، اس کے ہاسٹل کے فرینڈ سے۔ ایک اس کا دوست اویس بھی تھا جو سیالکوٹ کا رہنے والا تھا، وہ بھی اپنا ماسٹرز کمپلیٹ ہوتے یورپ چلا گیا۔ آج کل اسٹڈی ویزا کی بڑی سہولت تھی، اس لیے سبھی صاحب حیثیت اس سہولت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ مہمان ابھی آ رہے تھے، اور آنے والے مہمانوں میں انم، انیلا اور آمنہ وغیرہ بھی شامل تھی۔ رائنا ان سب کو دیکھ دیکھ کر گوشت کھانے کے قریب ہوگی کہ اس نے کس کس کو انوائٹ کر رکھا تھا، اور یونیورسٹی کے اتنے سالوں بعد بھی اس کا ان سب کے ساتھ کانٹیکٹ تھا، یہاں تک کہ ان نے اپنے 3-4 ٹیچرز کو بھی مدعو کیا ہوا تھا۔ وہ سب ہنسی کا وسیع حلقہ احباب دیکھ کر حیران ہو رہے تھے، لیکن بہت بڑی لعنتی ماری انہوں نے، بغیرتی ماری ایسے اس کو کر کے۔ انہوں بڑی نے بھی ٹارچر کیا، چھوٹی نے بھی ٹارچر کیا، لعنتی ٹپر۔ تازہ سر و گلابوں سے سجی سیج پر بیٹھی دلہن بنی رائنا اپنی انا مجروح ہوئے جانے کا ماتم منا رہی تھی۔ اسے ہر شے بری لگ رہی تھی، یہ پھول، یہ بستر، یہ سجاوٹ، یہ کمرہ، یہ گھر، یہ لوگ، سب کچھ ہی تو برا لگ رہا تھا، اور اس ہر چیز سے وابستہ اس شخص سے نفرت و حقارت محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا جی چاہ رہا تھا ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دے، ہر چیز کو آگ لگا دے، اور اپنی بے بسی پر دھاڑے مار مار کر کے بعد اس شخص کی باندھی بنا دی کہ جس کو وہ دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی، جو کسی بھی لحاظ سے اس کے قابل نہیں تھا، جو فلرٹی دھوکے باز تھا، جو بد چلن اور بد کردار تھا، انتہائی چال باز بھی تھا۔ اس نے کتنی آسانی سے بیٹھے بٹھائے چال چلی، اور رائنا حیدر جیسی ناقابل تسخیر لڑکی کو اپنی مٹھی اپنی قید میں لے لیا تھا، لیکن اب وہ ایسی بھی نہیں تھی کہ اس کے سامنے سر جھکا دیتی، وہ بھی بلا کی ضدی بدگمانانہ پرست لڑکی تھی۔ اپنی بات سے ہٹنا یا پھر اپنے خیالات کو غلط قرار دینا اسے بھی نہیں آتا تھا۔ وہ ہر چیز کو سلگتی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی، جب دروازے پر ہونے والی آہٹ سے چونکی، لیکن دروازے پہ کوئی نہیں تھا، وہ جو سمجھ رہی تھی۔ کیسی ہو بیٹا؟ آسمہ بیگم کی آواز اس کے قریب سے آئی، اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہوں، وہ مدھم سے لہجے میں بولی۔ کھانا لے کر آؤں؟ نہیں بھوک نہیں ہے، اس نے انکار کر دیا۔ بھوک کیوں نہیں ہے؟ تم نے ہوٹل میں بھی کچھ نہیں کھایا، ابھی میں مائرہ کو بھی کھانا دے کر آئی ہوں، ماشاءاللہ کافی ریلیکس اور خوش ہے۔ تم بھی ہر بات ذہن سے جھٹک کر اپنی ٹینشن کم کرو اور انجوائے کرو، یہ گھر جتنا مائرہ کا اتنا ہی تمہارا بھی ہے۔ کسی بھی چیز یا کسی بھی معاملے میں جھجک اور شرم سے کام مت لینا۔ ہنسی میرا بہت اچھا بیٹا، بہت ذہین اور لائق، میرا خیال ہے کہ تم اس کی طرف سے کچھ بدگمان ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بھی تمہاری بدگمانی دور ہوگی تم اسے ایک بہترین ہمسفر کے روپ میں دیکھو گے۔ اللہ تم دونوں کی جوڑی سلامت رکھے، خوش اور آباد رہو۔ وہ اسے دعا دیتی اس کا سر تھپک کر چلی گئی۔ بہت چنگے کو ٹوٹ کی دینا تسی لوگوں نے۔ رائنا چپ کی چپ بیٹھی تھی، اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ چند منٹ بعد ملازمہ دودھ اور کھانے کی ٹرے رکھ گئی۔ آسمہ بیگم کو پتہ تھا وہ کل سے بھوکی ہے، جب بھوک لگے گی تو کھانا کھائے گی۔ جب رائنا کو اطمینان ہو گیا کہ اب کوئی بھی نہیں اندر آئے گا، وہ بیڈ سے اٹھنے، لباس پر تبدیل کرنے کا سوچنے لگی، لیکن جیسے اس نے بیڈ سے اترنے کے لیے پاؤں سمیٹے، اچانک سے وہ زوردار آواز میں کہکا لگا دے عزلت میں اندر داخل ہوا، جیسے اس کو پیچھے سے کسی نے پکڑنے کی کوشش کی، اور یہ کام یقیناً کسی نیک لینے والے کا ہی تھا۔ اس نے اس طرح ہنستے ہوئے دروازے کو لاک لگا کر بالٹ پہ چڑھا دیا۔ میں تمہیں دیکھ لوں گی ہنسی، میں پیچھا نہیں چھوڑنے والی، تمہارے دروازے پر ساری رات پہرا دوں گی۔ باہر سے اس کی بہن سعدی کی آواز آئی۔ 1 سال پہلے اس کی بہن سعدی کی شادی ہو گئی، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ملک سے باہر چلی گئی، اور بھائی کی شادی میں آنے والی پرابلم ہو رہی تھی۔ شادی سے پہلے صحیح نہ ملنے کی بنا پر وہ آج پاکستان پہنچی تھی۔ اس نے آ کر دونوں بھابھیوں کا استقبال خوب کیا، اور اب نیک کے لیے شور مچا رہی تھی۔ اچھا پہرا دیتی رہو، کسی کو اندر مت آنے دینا۔ حسین نے شرارت سے کہا، وہ تلملاتی ہوئی پاؤں پٹکتی ہوئی چلی گئی۔ حسین کو اس کی ٹک ٹک کرتی ہیل کی آواز سنائی دی، اور وہ مطمئن ہو کر پلٹ کر بیڈ کی طرف آیا، اور رائنا کے قدم بیڈ سے نیچے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اپنے تاثرات کنٹرول کرتے اس نے بغور رائنا کی طرف دیکھا، وہ سرد نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے، کہاں کی تیاری ہے؟ نارمل سے انداز میں ذرا سا مسکرا کر بولا۔ بے فکر ہو، تم سے ڈر کر بھاگنے والی نہیں ہوں، وہ تمز کر سے چبا کر بولی۔ ویل ڈن، مجھے تم سے یہی امید تھی۔ وہ خوشی کا اظہار کرتے اس کے برابر بیڈ پر بیٹھ گیا، وہ بھی اتنے قریب کہ دونوں کے کندھے ایک دوسرے سے مس ہونے لگے۔ مجھ سے وابستہ تمہاری ہر امید ناکام رہے گی، وہ انتہائی تلخ ہو رہی تھی۔ ایسا نہیں ہوگا، بلکہ مجھے امید ہے کہ تم میری ہر امید پر پوری اترو گی۔ حسین نے عجیب سے زومانی لہجے میں کہتے ہوئے رائنا کے سونے کی چوڑیوں اور انگوٹھیوں سے سجا مخروطی ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا، اور اس کے ہاتھ کو سہلاتے ہوئے ہلکا سا چوڑیوں کو چھیڑا تھا۔ رائنا نے اس کی لمس سے ناگواری کا اظہار کرتے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ ڈونٹ ٹچ می، دور رہو مجھ سے، وہ نفرت سے پھنکاری، جبکہ وہ اس کی حرکت پر مشتعل ہونے کی بجائے مسکرا دیا۔ یہ میری دوسری امید ہے جو تم نے پوری کی ہے، اس نے دل جلا لینے والے انداز میں کہا، اور رائنا چونک گئی۔ میں نے کہا تھا نا تم میری ہر امید پوری کرو گی، وہ رائنا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ میں جو کہنا چاہتا ہوں تم وہ سمجھو گی نہیں، وہ مانی خیز لہجے میں بولتا ہے، ذرا سا اس کی سمت جھکا، لیکن رائنا ایک دم بیڈ سے اٹھ کر اس سے دور ہٹ گئی۔
तुमने जो करना था कर लिया, अब और नहीं। रायना ने लफ्ज़ में नफ़रत समाई हुई थी। मेरी जान, मैं एक शरीफ, मासूम और सादा सा बंदा हूँ, मैंने भला क्या करना है? वो जानबूझकर छेड़ने वाले अंदाज से कहता इसके सामने आ खड़ा हुआ। तुमने मुझसे शादी क्यों की? राणा ने बेलचक अंदाज में इस्तफसार किया। इसकी सवालिया नज़रें हंसी के चेहरे पर गड़ी हुई थी। तुम अच्छी लगी हो इसलिए? इसका जवाब सीधा और मुख्तसर सा था। निगाहों में दिलचस्पी थी, वैसे सरता पा गहरी नज़रों से देख रहा था। तुम्हें तो पता नहीं कौन कौन अच्छा लगता है। रायना का लहजा तलख हो गया। यार ये कौन कौन का सवाल अभी रहने दो, कभी फुर्सत से जवाब दूंगा। अभी तुम अपनी और मेरी बात करो। वो 2 कदम बढ़ाकर इसके और अपने दरमियान का फासला और भी कम कर चुका था। अपनी बात ये करो कि तुम जैसे गलीज इंसान से नफरत है, तुम्हें करेक्टरलेस। शट अप, जस्ट शट अप। रायना हसन, जुबान खींच लूंगा अगर तुमने आइंदा मेरे करेक्टरलेस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया तो। इसने एकदम गजबनाक अंदाज में थाड़ते हुए रायना का चेहरा एक हाथ में दबोच लिया था, इतनी सख्ती से कि रायना का जबड़ा कड़कड़ा के रह गया। वो आग उगलती आंखों से इसे देख रहा था। मैं करेक्टरलेस नहीं हूँ, मैं बदकिरदार नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नफ्स और अना का मारा हुआ इंसान नहीं हूँ। मैं अगर ऐसा होता तो आज तुम इतनी इज्जत और गुरूर के साथ मेरे सामने ना खड़ी होती। मैं अपनी इंसल्ट के बदले तुम्हें कब का तुम्हारे अंजाम तक पहुँचा चुका था। जिस तरह तुमने बीच चौराहे में मेरी तौहीन की थी, बिल्कुल इसी तरह अगर मैं चाहता तो तुम्हें बीच चौराहे पर रुस्वा और बदनाम कर सकता था। मैं अपनी हिद्दत के बदले में तुम्हारी इज्जत पर दाग लगा सकता था। मैं तुम्हें तुम्हारी ही नज़रों में गिरा सकता था, इतना कि तुम अपने आप से भी नज़र मिलाने के काबिल न रहती। आज तक जो गरूर तुम साथ ले फेरी हो वो कब का मिट्टी में मिल चुका होता, मगर ऐसा तब होता अगर मैं बदकिरदार होता। तुम नहीं जानती नायना से मैंने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया। इस वक्त मेरे दोस्तों ने मुझसे कहा भी था कि मैं जैसे चाहूँ तुमसे बर्ताव करूँ। वो हर तरह से मेरे साथ है, लेकिन मैंने दोस्तों के उकसाने के बावजूद ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम्हें रुस्वा कर देता और तुम सारी उम्र बैठ के रोती रह जाती। हंसी ने काटदार लहजे में कहते हुए इसका चेहरा झटके से छोड़ दिया। रायना गुंगसी से देख रही थी। मेरी जिन फ्रेंड्स को तुम अपनी गंदी जहनीत से देखती हो वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स हैं, कल भी और आज भी। तुमने हमेशा लड़के लड़कियों को गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के तराजू में तोला। तुमने कभी ये नहीं सोचा कि फ्रेंडशिप जस्ट फ्रेंडशिप भी हो सकती है। तुमने जायज़ ताल्लुकात का कभी सोचा ही नहीं, बल्कि हमेशा नाजायज़ ताल्लुकात पर ध्यान दिया। तुम अच्छा नहीं सोचती, हमेशा बुरा सोचती हो, बुरा पहलू सामने रखती हो और अच्छा पहलू पसपुश डाल देती हो। मैं लड़कियों के बारे में क्या सोचता हूँ मैं इसके लिए जवाब दूँ, और लड़कियाँ मेरे हवाले से क्या सोचती हैं इसके लिए वो जवाब दे। मैंने कभी किसी को ख्वाब नहीं दिखाए, कभी मोहब्बतों के वादे नहीं किए, कभी शादी का झांसा नहीं दिया। मैं जब भी किसी के साथ फ्रेंडशिप करता था सबसे पहले अपनी हर बुरी अच्छी बुरी बात बताता था। कभी कुछ छुपा कर नहीं रखा, कभी धोखा नहीं दिया, कभी लड़कियों की मासूमियत से फ़ायदा नहीं उठाया। मैं हमेशा लड़कियों के साथ डेट पे गया, मगर ऐसी डेट पे जो इखलाकी हदूद के अंदर, हदूद से बाहर नहीं। मैं जिस डेट पे भी गया वो डेट हमेशा रेस्टोरेंट के हॉल में बैठ कर गुजारी, कभी किसी होटल के बेडरूम तक जाने की नौबत नहीं आई। मैंने हमेशा अपनी फ्रेंड्स का एहतराम किया, इन्हें एक लेवल तक रखा, कभी इस लेवल से बढ़ने नहीं दिया। अलबत्ता वो मेरे बारे में क्या सोचते, कैसे ख्यालत, कैसे जज्बात रखती, इस चीज़ से मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी लाइफ एकदम फेयर है। जितना बाकिरदार तुम अपने आप को समझती इससे कई गुना ज़्यादा बाकिरदार मैं खुद हूँ। मेरी ज़िंदगी अल्लाह के फजलो करम से पाक और साफ़ है। मैं किरदार के लिहाज से अल्लाह की नज़र में सुरखुर हूँ और अपनी नज़र में भी, क्योंकि मैंने आज तक कोई भी गलीज हरकत नहीं की। मैं जानी नहीं हूँ, मैं करेक्टरलेस नहीं हूँ। जायना हसन, सुना तुमने? मैं बदकिरदार नहीं हूँ। अच्छा, जायना हसन अपना नाम लाया भी कौन? जायना हैदर सी पहले। रायना, रायना सॉरी, जायना नहीं रायना। उसे कंधे से थाम कर झंझोड़ते हुए बोला था। रायना पत्थर की हो चुकी थी। वो शख्स किस हद तक सच्चा था ये इसके चेहरे से नजर आ रहा था। इसकी सच्चाई इसके मजबूत लफ्ज़ों से जाहिर हो रही थी। इसने जो बातें की थी वो सच्ची तो थी। जो भी तो यही कहती थी कि हसन ऐसा नहीं है जैसा तुम सोचती हो। इसकी गवाही तो कई लड़कियों ने भी दी, मगर रायना हमेशा इन सबको ट्रेंड समझ कर इग्नोर कर देती थी। मगर वो कब तक इग्नोर कर सकती थी? रायना, बुरा वो नहीं है, बुरी तुम्हारी सोच है। तुम वही पढ़े लिखे जाहलों जैसा अंदाज अपना चुकी हो। जिसको भी देखा हमेशा शक की नज़र से देखा। दकियानूसी ज़हनियत है तुम्हारी। तुम समझते हो कि लड़के लड़कियां दोस्त हो ही नहीं सकते, हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं कि एक साथ नजर आने वाला लड़का और लड़की नाजायज़ ताल्लुक में बंधे हो। इनका रिश्ता एक पाकीज़ा रिश्ता भी हो सकता है, बस इस रिश्ते को परखने वाली आँख और सोच अच्छी होनी चाहिए। जो कि बहुत पहले की कई भी बात इसके जहन में गूंजती थी। रायना बेदम सी होकर बेड पर बैठ गई। इसे अपना दिमाग एक बोझ सा लगने लगा। वो सर थाम कर बैठ गई। वहीं बैठे बैठे न जाने कितनी देर गुजर गई। वो चौंकी इस वक्त जब कमरे में मलका सा अंधेरा देखा। इसने एकदम बेड की दूसरी तरफ देखा। हंसी कपड़े तब्दील करके बेड की दूसरी साइड पर लेटा सो रहा था। उफ, इतनी देर गुजर गई। वो दिल थाम के रह गई। अब इसे जगा कर कुछ कह भी नहीं सकती थी। सो मजबूरन उठी, कपड़े और जेवर वगैरह तब्दील करके आराम से सूट पहन कर खुद भी बेड पर आकर लेट गई। नींद को सो दूर थी। वैसे जिस तरह ने अपने आप ने दिखाया, जिस तरह ना मतलब सी, तो उसने तो ये इसी तरह के शक करने सी फिर, लेकिन वो थोड़ा शक ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत एक्सट्रीम लेवल ਤੇ चली गई। सुबह इसकी आंख खुली तो इसकी पहली नज़र बेड की दूसरी साइड पर गई। वो वहाँ नहीं था। इसने फ़ौरन कमरे में नज़र दौड़ाई। वो ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा हेयर ब्रश करता नजर आया। रायना इसकी से उठ के बैठ गई। गुड मॉर्निंग। मायने में इसका अक्स देख चुका था। बेड के बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल थी, इसलिए पुश्त होने के बावजूद अपने पीछे का मंजर बआसानी देख सकता था। रायना ने हैरिस को देखा। रात इतना कुछ हो जाने के बावजूद कितना रिलैक्स, लापरवाह, नॉर्मल नजर आता, बल्कि इसे मॉर्निंग विश कर रहा था। तुम तैयार हो जाओ, नीचे जाकर नाश्ता भी करना है।
सादी ऊपर नाश्ता लेकर आ रही थी, मैंने मना कर दिया। वो हेयर ब्रश ड्रेसिंग टेबल पर रखकर इसकी तरफ मुड़ा और रायना को एक नज़र देखकर बेडरूम से बाहर निकल गया और कुछ कहने की गर्ज से रायना के लब खुले रह गए। वो इसको बोलने का मौका दिए बगैर सामने से हट गया था। रायना हाथ मलती हुई उठकर वॉशरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर बाहर निकली तो कमरे में अजीब सी गुड़गुड़ाहट की आवाज़ पर ठिठक गई। आगे पीछे देखने के बाद इसे बेड की साइड टेबल पर हसन का टच सिस्टम मोबाइल नजर आया जो वाइब्रेशन से थिरक रहा था और इसकी स्क्रीन रोशन हो रही थी। रायना ने आगे बढ़ के मोबाइल उठा लिया। सामने जोजो कॉलिंग देखकर वो ज़रा की ज़रा चुप हुई और फिर कॉल रिसीव की। गुड मॉर्निंग हंसी, जोजो की आवाज़ चहक रही थी। गुड मॉर्निंग टू, रायना की आवाज़ धीमी थी। कौन? जोजो ठिठकी। मिसेस रायना हसन। रायना ने बड़े रिलैक्स से अंदाज में अपना तारुफ करवाया। जोजो एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ी। उसकी हंसी एयरपीस से खनक के साथ बाहर आ रही थी। मैं पहले पहचान गई थी, बस तुमसे तारुफ सुनना चाह रही थी। गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा सुनकर। अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। जो बिल्कुल इसी अंदाज में बात करती जैसे पहले करती थी। इसने रायना को ये भी न जताया कि यूनिवर्सिटी से फारिग होते तुमने अपना नंबर इसलिए चेंज कर लिया कि वो लोग इसे कांटेक्ट न रख सकें। और सचमुच ऐसा ही हुआ। यूनिवर्सिटी के फ़ौरन बाद जो की शादी होगी थी। इसका हस्बैंड अमेरिका की यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। वो पिछले 4 सालों से अमेरिका में थी और मुसलसल हंसी के साथ राब्ते में थी। इसके हस्बैंड को भी इनकी दोस्ती का पता था, लेकिन वो इस दोस्ती पर कोई इतराज़ नहीं करता था क्योंकि दोस्ती को महज दोस्ती समझता था, ताल्लुकात में नहीं बदलता था। आमीन एंड थैंक यू। रायना का लहजा अब भी धीमा था। ज़िंदगी की नई शुरुआत मुबारक और नई सुबह भी खैर मुबारक। वो जो कितने खुलूस पर अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो रही थी। हंसी का है? शायद नीचे गया। तुम दोनों में कोई झगड़ा तो नहीं हुआ? जो फिक्रमंद से अंदाज में पूछ रही थी। नहीं। शाबाश, अच्छी बात है। गुजरी बातों को भूल जाओ और नई ज़िंदगी की शुरुआत करो अच्छे और मुखलिस दिल से। इंशाल्लाह। तुम सब दोस्तों की दुआ चाहिए। हमारी दुआएं तो 3-4 रोज़ से तुम्हारे साथ है। जब से हसी ने तुम्हारा बताया था हम मसल्ला डाल के बैठ गए थे। जो हंसते हुए बोली को वो अपने दोस्तों को पहले से बता चुका था। तुम पाकिस्तान कब आ रही हो? जब तुम और हसी इनवाइट करोगे हम आज ही कर लेते। मैं भी आज ही आ जाऊंगी, लेकिन ख्वाब में। जोजो ने बेचारगी से कहा। फिर दोनों हंस पड़ी। सादी अंदर आई तो रायना ने जोजो से माजत करके फ़ोन बंद कर दिया। वो इसे नाश्ते के लिए बुलाने आई थी। जनाब चांद अफजल साहब तो आज बड़े खुश हैं। हसी ने जैम का ढक्कन खोलते हुए भाभी और भाई को देखा और सादी ने छेड़ा। क्यों, तुम खुश नहीं हो? चांद भाई तेरी से कहा। चांद भाई ने तेरी से कहा। खुश तो हूँ, मगर इतना नहीं जितने आप दिखाई दे रहे हैं। मुस्कुराहटें और शर्माहटें बिखरी पड़ी हैं। क्यों भाभी, एक ही रात में कौन सा मंत्र पढ़ के फूंका? हसी ने शरारत से दोनों को देखा। मायरा ने मुस्कुराकर चेहरा झुका लिया। वो शर्माई शर्माई थी, वाकई बहुत अच्छी और प्यारी लगी थी। ओए मियाँ मजनू, 2 रोज़ पहले क्या हाल था तुम्हारा? शादी के लिए मरे जा रहे थे, जबकि ये कहना चाहिए कि मेरी इकलौती साली पर मरे जा रहे थे। अगर वो बेचारी हामी ना भरती तो तुम अभी तक कशकोल थाम के किसी और तरफ निकल चुके होते। वो भी मूड में होते तो इनके सामने भी किसी की नहीं चलती थी। अब ऐसी भी नौबत नहीं है कि मैं कशकोल थाम लूँ। मैं किसी के इश्क में मरा नहीं जा रहा था। हसी ने चढ़ती सी नज़र रायना के चेहरे पर डाली। वो चुप चुप सी बैठी थी। इन सब लोगों ने हंसी की बात को मजाक में लिया, लेकिन रायना जानती थी कि वो सच कह रहा है। तुम लोग कभी तो आराम से नाश्ता कर लिया करो। आसमा बेगम ने खफगी का इजहार किया। मॉम बोलते रहने से खाना हजम होता रहता है। सादी ने स्लाइस से बातें हुए बात ही खत्म कर दी। ओह अच्छा, तो इसलिए तुम बोलती रहती हो, खाती रहती हो। हसी ने भवें उठ गए। तुम मुझसे बात ना ही करो तो अच्छा है। अरे मेरी जान, क्यों ना करूँ? हसी ने इसका हाथ पकड़ लिया। तुमने मुझे रात को नेगी नहीं दिया, चांद भाई ने तो फ़ौरन दे दिया। इसलिए तो कहा जनाब, चांद अफजल साहब की तो खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं है। नोट बांटते फिर रहे। इसने फिर रुख चांद भाई की तरफ किया। वो तो बांटते फिरे, लेकिन तुम कंजूस कहेंगे अपने नोटों का वॉलेट भरे फिर रहे हो। सादी तिल मिलाकर बोली। वहाँ मौजूद सभी मुस्कुरा दिए। वो खुद भी हंस पड़ा। सईदा, आसमा बेगम ने बेटी को सरजनिश की। भाई है तुम्हारा, कुछ तो सोच समझ कर बोला करो। मॉम, ये भाई है मेरा, मगर मुझसे छोटा है। सादी ने वजाहत दी। इट्स ओके यार, तुम जो चीज़ चाहे कहो। हसी ने सादी का कंधा थपका। वो इससे 1 साल बड़ी थी। छोटी भाभी क्यों उदास है? सादी ने बुलंद आवाज़ से अपने ख्याल का इजहार किया। रायना गड़बड़ा गई। सारे इसी की तरफ मुतवज्जो हो गए। ये बात तो मैं भी नोट कर रहा हूँ। अफजल साहब का लखन करते बोले। नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। मैं इनफैक्ट आप सबकी बातें सुन रही हूँ। सादी की और चांद भाई की बातें सुनकर लग रहा है जैसे फ्रेंड्स आपस में नोक झोंक कर रहे हो। इसने हंसी का नाम लेते हुए झिझक महसूस की थी, इसलिए इसका नाम लेने से कतरा गई। और इन फ्रेंड्स में तुम भी शामिल हो सकती हो। ये तुम्हारा अपना घर है बेटा। इन्होंने अपनी चेयर घसीट के उठते हुए रायना के सर पर हाथ रख के तसल्ली दी। जी अंकल, वो सारतमंदी से बोली। अफजल साहब के साथ साथ चांद भाई भी उठकर चले गए। शाम को वलीमे की रस्म थी। काफ़ी इंतजाम देखने वाले थे अभी। मायरा आसमा बेगम के साथ बेडरूम में आ गई। इन दोनों के साथ अब सादी मौजूद थी। सो तन्हाई महसूस करते वो भी वहाँ से खिसक गई। रायना के पास मौका अच्छा था। इसने डरते डरते हंसी की तरफ देखा। मैं भी भाई और डैड के साथ जा रहा हूँ, तुम आराम से नाश्ता करो, शादी आ जाती है अभी। वो कप रखते हुए कुर्सी धकेल के खड़ा होकर छपाक से बाहर निकल गया। रायना एक बार फिर देखती रहेगी। वो खफा था, ये तो जाहिर हो ही चुका था। चलो फिर मना लो, फिर रोज़ मनैया लगा ही रहना। शाम 8 बजे वो तैयार होकर हॉल में पहुंची तो वो दोनों भाई ने रिसीव करने की गर्ज से गेट पर ही मौजूद थे। मायरा को देखकर चांद भाई फ़ौरन करीब गए और इसे गाड़ी से उतरने में मदद दी, जबकि हंसी अपनी जगह पर हनूस खड़ा था। हंसी, खड़े के देख लो, इसे लेकर आओ। अफजल साहब की आवाज़ पर वो ठिठका फिर फ़ौरन गाड़ी के करीब चला गया, लेकिन जैसे ही रायना पर नज़र पड़ी, नज़र हटना भूल गई। वो मबहूत खड़ा रह गया। इंतहाई कीमती गोल्डन लहंगे में वो रेड मेकअप के साथ सर से लेकर पाँव के
अंगूठी तक सजी सबरी होश उड़ा रही थी। इसका होशरुबा हुस्न ईमान शिकन साबित हो रहा था। हंसी ने पहले कभी इसे इस नज़र से नहीं देखा था, मगर जब देखा तो फिर वो कुछ और देखना भूल गया था। देखें जी, सारी बात है प्यार की। प्यार हो तो बंदा बीच रास्ते में भी होश गुम कर बैठता है। ओए होए, तो हंसी वाला डायलॉग उन्होंने बोल लिया। चांद भाई ने करीब आकर कहा तो हंसी से पटाकर मतवज्जा हुआ और फिर अपनी खजालत छुपाने के लिए इधर उधर देखने लगा। मायरा और चांद भाई इन दोनों के इंतजार में खड़े थे ताकि एक साथ अंदर जाएं। तुम लोग आगे चलो, ये पीछे आते हैं, आसमा बेगम ने चांद भाई से कहा। फिर हंसी को इशारा किया, खुद अंदर चली गई। चांद भाई को देखा देखी हंसी ने भी रायना के बाजू में बाजू डाल लिया। वो दोनों जोड़ियां बहुत आहिस्ता रवि से मतवाजन चाल चलती हुई आगे बढ़ी थी। यूँ लग रहा था जैसे वो रेड कारपेट नहीं बल्कि रैंप पर चल रहे हो। अगर ऐसे बिहेव करना था तो मुझसे शादी क्यों की? रायना इस किसी के साथ चलते हुए बोली। नजरें हाल में बैठे लोगों पर थी जो गर्दनें मोड़कर इन्हें इश्तियाक से देख रहे थे, और देखने के बाद इनके चेहरों पर सताइश उभरी थी। मुझे ऐसे बिहेव पर तुमने मजबूर किया, वो भी इसकी तरफ देखे बिना आहिस्ती से बोला। मैं जिस काम पर मजबूर करूंगी आप कर लेंगे? रायना के सवाल में तजस्सुस था। हाँ, लेकिन क्यों? आप मेरा कहा क्यों मानेंगे? बेयकीन थी। क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तो फिर एक काम करने को कहूँ? बिल्कुल कहो। मुझसे फ्रेंडशिप कर ले, इसने फरमाइश की। तुमसे शादी कर ली, क्या ये कम नहीं? आप अच्छे शौहर हैं या नहीं मुझे इस चीज़ का कोई इल्म नहीं, अलबत्ता आप अच्छे दोस्त हैं, ये मैं अच्छी तरह जान गई हूँ। इसने इतराफ़ किया। जान जाने का शुक्रिया। नाराज़ है मुझसे? हाँ। वो हाँ कहने के साथ ही स्टेज की सीढ़ी पर कदम रख चुका था। रायना की बात वहीं रह गई। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वो लोग बैठे थे कि हंसी के दोस्तों ने एक बार फिर हल्ला बोल दिया। वालेकुम अस्सलाम, बैठिए ना। रायना का दिल साफ हो चुका था। अब इसके लिए सारे रिश्ते बहुत प्यारे थे। जी जी, हम बैठने के लिए तो आए, दरअसल आप हमने आपको इन्फॉर्म करना था। तौसीफ ने हंसी की तरफ देखते हुए कहा। इन्फॉर्म? जी, दरअसल हंसी साहब की एक नई लड़की के साथ फ्रेंडशिप हुई है अभी इसी हाल में। दोनों हेलो हाय कर रहे थे, आप बीच बचाव कर लीजिएगा। तौसीफ ने शायद को पुराना बदला चुकाना चाहा। कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप तो किसी से भी हो सकती है। और बात हेलो हाय की तो ये फंक्शन हमारा है। हम नहीं मिलेंगे, अपने मेहमानों से हेलो हाय नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? रायना का पुरसुकून सा जवाब इन सबको चुप और हंसी को अंदर ही अंदर सरशार कर गया। भाभी? जैगम ने हैरत से आंखें फैलाकर कहा। जी देवर जी, वो भी इसी के अंदाज से बोली। हंसी अपनी मुस्कुराहट छुपा गया था। रायना शेर को सवा शेर साबित हुई थी। आप रायना ही है ना? अली ने तस्दीक के लिए पूछा। मैं रायना हसन ही हूँ। इसके मजबूत लहजे में वो लोग मायूस होकर बैठ गए। हम सोच रहे थे हम पांचों को कवारा छोड़कर इस कमीने ने खुद शादी कर ली, हम इसकी बीवी को भड़का भड़का कर आग बना देंगे, वैसे चैन नहीं लेने देगी। लेकिन एक कमीना रातों रात चाल चल गया, अपने काबू में कर लिया आपको। अली आज फिर सर थाम के बैठ गया था और वो सब दिल खोल के हंसे थे, और इनके साथ रायना भी शरीक थी। वो काफ़ी देर इन लोगों के पास खड़े रहे और रायना इनकी बातों से महजूज होती रही। वो आज अपनी हदूद ज़ात से बाहर निकली तो दुनिया बड़ी हसीन लगी। हदूद ज़िल्लत हदूद ज़ात से बाहर निकल कर देखो, ना कोई गैर ना कोई रकीब लगता है। सादी रायना को बेडरूम में छोड़कर चली गई और रायना धीमे कदमों से चलती हुई कमरे के वस्त में आ खड़ी हुई। ताज़ा फूल अब बासी हो चुके थे, लेकिन दम तोड़ने से पहले भी दिल फरेब महक छोड़ रहे थे। अभी भी इन फूलों के लबों पर मुस्कान थी, क्योंकि वो सिर्फ मुरझाए थे, मजरू नहीं हुए थे। अगर मजरू होते तो रो रहे होते, लेकिन इसकी ताजगी बताती थी कि वो खुश थे। रायना आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती आईने के सामने आ ठहरी। आईना इसकी तारीफ में कसीदा पढ़ना शुरू हो गया। अपने सजे सवरे सरापे को देखकर खुद ही चैन की, ज़्यादा देर आईने के सामने न ठहर पाई। इसने इसी तरह लहंगे में मलबूस पूरा कमरा घूम फिर के देखा और एक बुक रैक के पास थम गई। चंद नावल और पोइट्री बुक्स के अलावा शेक्सपियर के ड्रामे भी तरतीब से सजे हुए थे। वो बारी बारी देखती रही और फिर इसका हाथ मोटे से फोटो एल्बम पर जा रखा। स्वीट मेमोरीज एल्बम पर टाइटल लिखा था और साथ ही हंसी की बड़ी सी तस्वीर सजी थी। रायना एल्बम लेकर बेड पर आ गई। इसने एल्बम खोला, फिर देखती चली गई। यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ फंक्शंस में ली जाने वाली तस्वीरें थी। वो सब दोस्त हर तस्वीर में एक दूसरे को छेड़ते हुए नजर आ रहे थे। कोई रो रहा था, कोई भंगड़ा डाल रहा था, किसी के मुंह पर टूथपेस्ट गिरते हुए झाग निकल रहा था और कोई 3 पीस सूट में हैंडसम लग रहा था। हर डिपार्टमेंट के चेहरे नजर आ रहे थे। हर ब्लॉक में तस्वीरात बनाई गई थी। तस्वीरें बनाई गई थी। ये तस्वीरें पूरे गुजरात की कासी करी थी। हर जगह की तस्वीर थी। क्या देख रही हो? वो करीब आकर बोला, और वो कब आया था रायना को पता ही नहीं चला। यादें। वह तस्वीरों को छूते हुए यूँ मुस्कुराई जैसे तस्व्वुर में वहीं पहुंच गई हो। ये यादें तो सिर्फ हमारी हैं, हम दोस्तों की, लेकिन इन्हीं यादों से कहीं मैं भी तो जुड़ी हूँ। वो कैसे? हंसी ने एल्बम देखते हुए सवाल किया। क्या ये याद कम है कि हम लोग यूओजी में मिले थे? हम यूनिवर्सिटी फेलो थे। हर वक्त लड़ाई झगड़ा करने वाले यूनिवर्सिटी फेलो। हंसी का लहजा खफा खफा सा हो रहा था। रायना एल्बम साइड पर रख के इसकी तरफ मतवजा हुई। लड़ाई झगड़े ख़त्म भी तो हो सकते हैं। वो इसके सामने आ खड़ी हुई, फिर दोनों हाथ जोड़ दिए। आई एम सॉरी हसन, आई एम रियली सॉरी। मैंने वाकई तुम्हारी बहुत इंसल्ट की थी। मैं अपने किए पर पशेमान हूँ। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो तो तुम थे कि तुमने माफ़ कर दिया और इस बात को भूल के, वरना कोई और होता तो न जाने क्या कर डालता। बाकी सच कहते हैं, औरत को सोच समझ के मर्द को ललकारना चाहिए, वरना सब कुछ तबाह भी हो सकता है। हर मर्द हसन नहीं होता। रायना दोनों हाथ बांधे इससे माफ़ी मांग रही थी। अब हसन ऐसा भी पत्थर दिल नहीं था कि निगाह चुरा लेता। इसने फराक दिली से इसे माफ़ करते हुए खुद से लगा लिया। रायना अल्लाह का शुक्र बचा लाई कि वो किसी नुकसान से बच गई। इन दोनों की ज़िंदगी अब किसी भी बदगुमानी से पाक हो चुकी थी। अब रायना की सोच भी वैसी थी जैसी बाकी सबकी। वो हंसी के साथ बैठी न जाने कितने पहर यादें एल्बम देखती रही और एक एक जगह एक एक स्टूडेंट और दोस्त के मतलब बताता रहा।
राय ने 4 साल यूनिवर्सिटी में रही मगर लोगों को इतना ना जान पाई जितना आप जान रही थी। हर तस्वीर के साथ कोई ना कोई कहानी वो बसता थी। हंसी एल्बम देखते देखते इसकी तरफ मतवजह हुआ। मोहतरमा तुम आज भी एल्बम पर ही रखाओगी है ना? राय ने एकदम इसके अंदाजे पर हंस पड़ी। लेकिन आपको एल्बम ज़्यादा प्यारा, वो खफकी से बोली। एल्बम तो प्यारा लेकिन तुम तो अपनी जान हो। वैसे परे खिसकते देखकर एकदम तो पहुंच चुका था और रायना चोरी पकड़े जाने पर खिलखिला उठी। इन दोनों की शायद भरी हंसी की आवाज़ बेडरूम से बाहर भी सुनाई दे रही थी। ख़त्म शोध। जी तो गाइस हमारा ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। तो अभी हम चलते हैं कमेंट सेशन की तरफ, फिर वीडियो एंड करेंगे। अगर मैं वैसे अपनी राय बताऊं आपको तो अच्छा था ये नावल, अच्छा था, लेकिन बस बात वही है, जो इंसान जो चीज़ देखता है वो उसी को जज करता है, पीछे नहीं बता कि अंदर से बंदा कैसा है कैसा नहीं है। जो हर किसी ने आपका ज़ाहिर जज करना है कि आप किस तरह से बिहेव कर रहे हो, किस तरह से एक्ट करते हो। बाकी दूसरी बात, हाँ ये वहाँ पे गलत थी रायना बीबी के जब उन्होंने एनिया गला गुला मार के आ गई। तेरा सिर्फ उन्हें हाल चाल पूछा सी, जवाब देना सी, दे नहीं देना सी, शर्तों के लंघ जा। बाकी वो उधर कुछ कर देता तो फिर तू की करना सी करना सी बह के। खैर अभी चलते कमेंट सेशन की तरफ, बाकी फिर वीडियो को एंड करते हैं। ज़ैनब अशरफ, ज़बरदस्त नावल और आपका ओए होए इज़ द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। ओए होए ज़ैनब अशरफ, थैंक यू। अल्ताफ़ अहमद, एवरीथिंग एल्स वाज ओके बट अफरीदी को ऐसे सबा को मारना नहीं चाहिए था, और तो और ऐसे शर्मिंदगी भी नहीं हुई थी। क्या फ़ायदा थे फूफो की लाड़ प्यार का, जब ज़रूरत आए तब साथ नहीं दिया। हमदा बहुत अच्छी दोस्त थी। ओवरऑल नावल अच्छा था। थैंक यू वेरी मच अल्ताफ़ अहमद। मैं भी यही कहती हूँ, पेटे पेटे के नाश मारता कुड़ी था। तुरबीना तौफीक, अच्छा नावल है। थैंक यू तुरबीना। आहा। लाविश सलोन, अच्छा था। थैंक यू लाविश सलोन। सायरा रियाज, बहुत अच्छा नावल है। अनाया के शक अपनी जगह ठीक है, ठीक थे बट सुपरफिशियल नहीं बनाना चाहिए था, लेकिन अच्छा हल्का फुल्का नावल था। अनाइज़ा, थैंक यू सायरा। हाँ जी सही कह रही हैं, बस वो तो अपने आप तो बाहर नहीं होना चाहिए सी, बाकी थोड़ा बहुत तो चलता है यार। थैंक यू सायरा। आमरा तो फेल सुपर, थैंक यू आमरा। अल्ताफ़ अहमद, अच्छे थे नावल, हीरोइन मासूम थी, अब बेवकूफ़ कहा नहीं जा सकता बट गुसीली हद से ज़्यादा थी, डंगरी सी। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। मोहम्मद अवैस, ये एपिसोड जब भी सुनता हूँ इंजॉय करता हूँ, हंसी आती है, निकाह होते ही जूता पड़ा सलार को। कौन से वाला? हाँ वो वाला, वो सलार वाला तो सारा नावल ही कमाल है, जो उसको निकाह के बाद, वाकई निकाह के बाद जूतियाँ पड़ी थी। थैंक यू मोहम्मद अवैस। मुझे ये वाला नावल सारा ही बड़ा पसंद है, बल्कि कुछ नावल ऐसे हैं जैसे ये सदाम हो गया, सलार हो गया, इनका तो वो मतलब सुन के ही ना माइंड फ्रेश हो जाता है। नावल नहीं, वैसे नाम ही सुन के हो जाता है मेरा तो। तैयबा अशरफ, एज़ ऑलवेज ज़बरदस्त नावल आप ही, थैंक यू वेरी मच तैयबा अशरफ। नगीना राशिद, अच्छी स्टोरी थी, थैंक यू नगीना। साइमा रज़ा, बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त, थैंक यू साइमा। सुंदस नायाब, आप बहुत प्यारा बोलती हैं स्टोरी के बारे में, थैंक यू वेरी मच सुंदस। अनीस पानो, वाह बहुत ही प्यारी स्टोरी है, थैंक यू, वेलकम डियर अनीस पानो। आयशा आसिफ, गुड नावल, थैंक यू आयशा। लाविश सलोन, ज़बरदस्त था, थैंक यू लाविश सलोन। KH गेमिंग, नावल तो ठीक है, बस मज़ा वहाँ आता है जहाँ आप अपनी राय पंजाबी में देती हो, वो सुन के मुझे मज़ा आया, थैंक यू वेरी मच KH गेमिंग। उबैद खान कयानी, उबैद कयानी, वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर ऑसम नावल, थैंक यू उबैद कयानी। सायरा रियाज, अच्छा नावल था, बहुत ईच पर्सन को ही तकरीबन अपनी की गई ज़्यादतियों की पनिशमेंट मिली, सबका हिसाब बराबर हो गया। हाँ जी ये तो है, थैंक यू सायरा। अबू बकर शवाल, नाइस नावल, थैंक यू अबू बकर शवाल। अलॉन, आई एम वेटिंग फॉर बर्दा नावल बाय रियाज आकिब कोलर, अगर परमिशन मिली तो ज़रूर। और तो मेरा ख्याल कोई पेड प्रोजेक्ट है बर्दा। नगीना राशिद, ज़बरदस्त नावल, थैंक यू नगीना राशिद। आसिफ अलीम, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? प्लीज़ सिस्टर आप इश्क मुतशक्रम नावल भी रीड करें ना, आपने उम्र जाने से पहले। कौन सी राइटर का है? अगर तो परमिशन मिली तो कर दूँगी, तो इतना छोटा भी होना चाहिए था।
थैंक यू आतिफ अलीम। अल्ताफ़ अहमद, इंटरेस्टिंग लगा नावल। फैज़ तो बंदा सोना, बड़ा सोना मुंडा निकला, ज़रा थोड़े बगैरती मार गए थे, बाकी सब ठीक ही था। शादी कर देते तो और भी ठीक हो जाना था, तो होर की टैमो टैम ब्याह कर देंदे ना, एक अद्धा सीन होर पा देंदे ब्याह वाला। थैंक यू अल्ताफ़ अहमद। साइमा रज़ा, बहुत बेहतरीन उम्दा। थैंक यू साइमा। मैंने लगता मुक गए। कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुंचा। कैसा लगा आपको नावल? एक मिनट रुकियो, मैं चेक करा मुक गया वाकई कमेंट सेशन। हाँ जी मुक गया। तो कैसा लगा आपको आज का नावल? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू नावल के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।